میرے محترم بھائی اور دوستوں، جیسے میں نماز سے پہلے عرض کر رہا تھا، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت مہربان، بہت کریم، اپنے بندوں کو ابدی عذاب سے بچانے کے لیے اپنے مقرب کریم بندوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ 1,24,000 نبی آئے اور ساری زندگی اسی میں کھپ گئے کہ لوگ جہنم کی راہوں سے بچ کر جنت کے راستوں پر چلنے والے بنے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی تھے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کا نبی بنایا، سارے انسانوں کا نبی بنایا، سارے جنات کا نبی بنایا۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یہ آیت بتاتی ہے کہ جنات بھی آپ کی غلامی میں آپ کی نبوت کے تابع۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کی نبوت۔ بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، ہر کالے اور گورے کے لیے آپ کی نبوت۔ اب اور کوئی نبی نہیں آنے کا۔ انسانیت بڑے خوفناک انجام کی طرف جا رہی ہے۔ ابن آدم، ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے کا، ابن آدم جعلت لك عینین وجعلت لهم الغطاء، میرے بندے میں نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، آنکھوں پہ پردہ لگایا ہے۔ فانظر بعینیک ما احللته لك، ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو تیرے لیے میں نے جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے۔ فإن عرض لك ما حرمته عليك فأسبق عليهم الغطاء، جب تیرے سامنے کوئی ایسی شکل آئے جسے دیکھنا میں نے تیرے لیے منع کر دیا ہو، تو یہ پردہ حرکت کرتا ہے تیرے ارادے سے، اس کو بند کر دے اور اپنی آنکھوں کو جھکا لے، اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لے۔ یا ابن آدم جعلت لك لسانا وجعلت له بابا، میرے بندے میں نے تمہیں زبان دی، زبان پہ دروازہ لگایا، دو ہونٹ دروازہ۔ فانطق بلسانک ما احللته لك، اپنی زبان سے بول جو میں نے تیرے لیے جائز قرار دیا۔ فإن عرض لك ما حرمته عليك اغلق عليك الباب، تیری زبان پہ گالی آ جائے، غیبت آ جائے، چغلی آ جائے، جھوٹ آ جائے، کتنا ہم غلط بولتے رہتے ہیں، تو جب زبان پہ ایسا کوئی بول آنے لگے تو اغلق علیک الباب، تو اپنا دروازہ بند کر لے، دروازہ بند کر لے، اس پر کوئی غلط بول آئے نہیں۔ یا ابن آدم جعلت لک فرجا وجعلت له ستا، میں نے تیرے اندر شہوت رکھی ہے، اس شہوت کو قابو کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے۔ فأخذ بفرجک ما احللته لک، اپنی شہوت کو نکاح میں استعمال کر، زنا میں استعمال نہ کر، نکاح میں استعمال کر، حلال میں استعمال کر۔ فإن عرض لك ما حرمته عليك، اور اگر تیرے سامنے شیطان کوئی حرام کاری کے راہیں لائے تو ارخ علیک الستر، تو اپنی شہوت کو روک لے، اپنی شہوت کو روک لے، یہ حرامتوں کے لیے نہیں تیرے اندر رکھی۔ یہ آخری جملہ سنانا تھا، اس پر ساری آپ کا حدیث سنائی۔ یا ابن آدم لا تطیق عذابی ولا تتحمل سخطی فتعصینی، میرے بندے سوچ سمجھ کے میری نافرمانی کرنا، یاد رکھنا نہ تو میرا عذاب سہ سکے گا نہ تو میرا غصہ سہ سکے گا۔ یہ بتانا تھا یہ جملہ۔ سوچ سمجھ کے میری نافرمانی کرنا، نہ تیرے اندر میرے غصے کو سہنے کی طاقت ہے، نہ میرے عذاب کو سہنے کی تیرے اندر طاقت ہے۔ بھائیو، اس وقت دنیا بے لگام ہو چکی ہے اور خالق کو بھول چکی ہے، مخلوق میں گم ہو چکی ہے، مالک کو بھول چکی ہے، مملوک میں گم ہو چکی، رازق کو بھول چکے ہیں اور مرزوق میں گم ہو چکے ہیں۔ ساری دنیا کا رخ شہوتوں کی طرف، یہ امت اپنا کام بھول چکی ہے۔ وَكَذَلِكُمْ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیان کی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہی دو، تم لوگوں کو بتاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پہ گواہی دے۔ یہ آیت اس امت کے بارے میں بڑی عظیم آیت ہے، اس امت کے بارے میں۔ ہماری حیثیت، ہماری ایک سفر میں آ رہا تھا تو یہ آیت پر غور کرتے کرتے بہت سی چیزیں سامنے آئیں۔ شہداء امتن وسطا، ہم سب درمیان کے ہیں۔ درمیان کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے چکی دیکھی، چکی، اس کے درمیان ایک کیل ہوتا ہے جو اس کو گھماتا۔ اب تو جہازوں سے بھی چکیاں ختم ہو گئی نا، تو گھر گھر چکی ہوتی تھی، تو کیل ہوتا ہے، ایک نیچے کا پارٹ ایک اوپر کا، درمیان میں کیل، اس کے گرد وہ چکی گھومتی ہے۔ وہ کیل ٹیڑھا ہو جائے تو چکی کا کام
खराब हो जाता है। वो कील निकल जाए तो ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट के साथ मिल जाता है और चक्की बिल्कुल बंद हो जाती है। अल्लाह ताला हमें तशबीह दे रहा है चक्की के दरमियानी कील के साथ, उम्मतन वसता, एक जमीन का पार्ट है, एक आसमान का पार्ट है। चक्की के दो पार्ट हैं, एक जमीन एक आसमान। इसके दरमियान में हो ए उम्मत मोहम्मद तुम खड़े हुए। जब तुम सीधे होगे तो आसमान की गर्दिश भी दुरुस्त होगी, जमीन की गर्दिश भी दुरुस्त होगी, आसमान के तेवर भी ठीक रहेंगे, जमीन की निगाहें भी ठीक रहेंगी और तुम इस कायनात में मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बन के रहोगे। जब कील यूं हो जाता है, यूं हो जाता है तो उसकी गर्दिश बेतरतीब होती है, तो दाने बिन पीस से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जब तुम टेढ़े हो गए, यूं हो जाओगे, यूं हो जाओगे, नाफरमान हो जाओगे, तो फिर क्या होगा? जमीन के तेवर बदलेंगे, फलक की आंखें बदलेंगी। जो जमीन तुम्हारे लिए गल्ले उगलती है वही तुम्हारे लिए आग निकालेगी। जो आसमान तुम्हारे लिए रहमत के फरिश्तों को उतारता है वही आसमान तुम्हारे लिए अजाब के फरिश्ते लाएगा। जो हवाएं तुम्हारा पैगाम उठा के चलती थी वही हवाएं तुम पर तूफान बन जाएंगी। जो बारिशें तुम्हारी दुआओं पे होती थी और जमीन लहराती थी वो बारिशें बंद हो जाएंगी और अब शुरू हो वही तो ऐसे नदी और नाले बहेंगे कि तुम्हारे शहरों को शहर उसमें बहते चले जाएंगे। सारी जमीन आसमान की तरतीब टूट जाएगी अगर तुम सीधे गोया यूं हो गए या यूं हो गए। लेकिन जो कि तुम हो प्यारे, जमीन भी बाकी रहेगी, आसमान भी बाकी रहेगा, न जमीन टूटे न गिरे। जब तक तुम हो एक मुसलमान भी इतना ताकतवर है कि जब तक एक मुसलमान अल्लाह कहने वाला मौजूद है जमीन आसमान का निजाम कायम रहेगा, बरकरार रहेगा। ऐसा ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई खत्म कर सकता है। और जब ये कील निकल जाता है तो ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट से आके गिर जाता है और सारे काम को रोक देता है। जिस दिन ये उम्मत निकल जाएगी, सूरज मगरिब से निकलेगा, सूरज मगरिब से निकलेगा, काफिर एक तरफ हो जाएगा, मोमिन एक तरफ हो जाएगा। तेरा इसके बाद ना कोई मुसलमान हो सकता है, ना किसी का ईमान कबूल, न किसी की तौबा कबूल। इसके बाद ईमान वाले मरना शुरू होंगे, मरते 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 बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और पूरी धरती पर एक भी कलमा पढ़ने वाला बाकी नहीं बचेगा। जब ये कील निकल जाएगा तो अब अल्लाह को ऐसे गंदे इंसानों की जरूरत नहीं है जो ना अल्लाह को पहचाने ना आखिरत को पहचाने। जब तक हम हैं अल्लाह कायनात बाकी रखे। एक मिसाल देता हूं, गंदम में जब तक दाना खड़ा होता है हम उसको पानी देते रहते हैं, ना हमें उसके नीचे का नाड़ चाहिए, ना उसके अंदर में घास उग जाती है, बाथू उग जाता है, धुंधु चिट्टी उग जाती, गंदी झाड़ियां उग जाती, ना हमें वो चाहिए। लेकिन हम पानी सबको देते हैं कि दाना मौजूद है। दाने की मौजूदगी की बरकत से दरख्त को भी पानी मिलता है, नाड़ को भी पानी मिलता है और उसकी शाखों को भी पानी मिलता है, पत्तों को भी पानी मिलता है। दाने की तो खैर गंदी झाड़ी को भी पानी मिलता है, घास को भी पानी मिलता है और कांटेदार झाड़ियों को भी पानी मिलता रहता है। हम देखते हैं लेकिन दाने की बका के लिए हम सबको पानी देते हैं। खाद डालते हैं तो गंदी झाड़ी भी खाद खाती है, घास भी खाद खाता है, सरसब्ज हो जाता है, हरा हो जाता है। फिर एक दिन हमने रखा हुआ है, जब एक बड़ी मशीन आती है हार्वेस्टर और उसमें डलता है, यूं चलता है, दाने अलग करता जाता है और नाड़ को बाहर फेंकता जाता है, गंदी झाड़ियों को फेंकता जाता है, दाने अलग होते जाते हैं, गंदा सामान अलग होता जाता है। तो जब सारे दाने उठ के बाहर आ जाते हैं तो जो पीछे खेत में बचता है उसको एक तरफ से आग लगाई जाती है, वो आग खुद ब खुद सैकड़ों एकड़ में फैलती चलती हुई सारी झाड़ियां, सारे नाड़ को, सारे पत्तों को, सारी घास को जला के राख करके खत्म कर देती है। मेरे भाइयों, इन्ना यौमल फस्ल कान मीक़ाता, इससे पहले है लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा। इसके साथ है इन्ना यौमल फस्ल कान मीक़ाता। इन दो आयत के जोड़ से ये सारा मजमून निकलता है कि जब तक मुसलमान का दाना बाकी है गंदी झाड़ी कुफर की भी पिएगी, यहूदियत की झाड़ी भी पानी पिएगी, ईसाइयत की झाड़ी को भी मिलेगा, हिंदू को भी मिलेगा, सिख को भी मिलेगा, दहरी को भी मिलेगा, मुशरिक को भी मिलेगा, मुल्हिद को भी मिलेगा, सबको मिलता रहेगा। फिर एक दिन आएगा हार्वेस्टर वाला,
फिर एक दिन अल्लाह आएगा, इन्ने यौमल फस्ल कान मीक़ाता, फिर एक दिन अल्लाह आएगा उस फैसले के दिन के साथ। वो कहेगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, दाने एक तरफ हो जाओ, गंदी झाड़ियां एक तरफ हो जाओ। दाने एक तरफ हो जाएं, ईमान वाले अलग हो जाएं, गंदी झाड़ियां अलग हो जाएं। तो अलग हो गया, वो अलग हो गए। जैसे हम एक तरफ से तीली खींचते हैं और सबको आग लगा देते हैं, और उस दिन अल्लाह सारी कुफर की गंदी झाड़ियों को उठाकर जहन्नुम की आग में डाल देगा। हमारे खसो खाशाक तो जल के राख हो जाते हैं। कुफर की झाड़ी ऐसी गंदी झाड़ी है जो अबदुल आबाद जलती रहेगी, पर खाक नहीं होगी, राख नहीं होगी। फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, उन्हें हमेशा अजाब मिलता रहेगा और उसमें दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार रहेंगे। ईमान वाले जब तक हैं तो सबको मिलेगा, जब ईमान वाले चले जाएंगे तो अल्लाह का एक हुक्म आएगा, जमीन टूटी, आसमान टूटा, जोर जबर हुआ, सूरज बेनूर हुआ, चांद के टुकड़े हुए, जमीन बिखर गई, सितारे टूट गए, हवाएं खत्म हो गई, समंदरों में आग लगी, जानवर मर गए। जानवर तो आप अंदाजा लगा, यानी जमीन आसमान तो जमीन आसमान है, और जिब्रील भी मर जाएगा। लगेगा चलो जिब्रील भी मर जाए, मीकाईल भी मर जाए, मुसलमान गए तो ये भी जाए, सब खत्म, सबको मिटा देगा। कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, तुम दरमियान की उम्मत हो, दरमियान की उम्मत हो। तुम्हारी तो फैल कायनात खड़ी है, तुम मिट जाओगे, हम कायनात मिटा देंगे। तुम्हारा एक भी जिंदा है तो सब काफिर रोटी खाएंगे, सारे मुशरिक रोटी खाएंगे, सारे जहरीले रोटी खाएंगे। जब तक एक इस उम्मत का जिंदा है क़यामत नहीं आ सकती। अपनी हैसियत आप समझें भाइयों, अपनी हैसियत समझो। आज पर जमीन आसमान कायम खड़ा हुआ है, और आप और मैं और आप ही अल्लाह के नाफरमान हो जाएं तो कितनी बड़ी गिरावट हो गई। जो हमारी वजह से कायनात का निजाम चलाए, हम उसी से टकरा के बागी हो जाएं, उसी को सजदों का इनकार कर दें, उसी की शरीयत का मजाक उड़ाया जाए, उसी के हुक्मों को हर गली बाजार में तोड़ा जाए। उसने पहाड़ों को सब्ज चादर पहनाई, ठंडी हवाएं चलाई ताकि मेरा शुक्र अदा करें, और हम इन ठंडी हवाओं को अपनी नाफरमानियों से गर्म कर दें। उसने इनको सब चादर पहनाई के देख कर मेरे शुक्र में सजदे लंबे करें, और हम सारी नमाजें छोड़ दें, तो हमसे बड़ा जालिम कौन हुआ। जैसे नहीं नीचे पंजाब में क्या आग बरस रही है, आप लोगों को तो सजदे से सर नहीं उठाना चाहिए, और यही नमाजें गायब, फर्ज नमाजों की छुट्टी। तो जिसकी बरकत से कायनात कायम है, ये वो उम्मत, उम्मतन वसता, उम्मतन वसता। तुम्हारी तो फैल तो जहान कायम है। तो हमारा काम क्या है, हम आए हैं, हम पर चक्की चल रही, हमारी बरकत से चक्की चल रही। हम टेढ़े होंगे तो चक्की टेढ़ी होगी। चक्की टेढ़ी होने का क्या मतलब, सर नफरतें आएंगी, अदावतें आएंगी, काफिर मुसल्लत हो जाएंगे, मुशरिक मुसल्लत हो जाएंगे, दुश्मन का खौफ तारी हो जाएगा, रोटी के चक्कर में गिरफ्तार हो जाएंगे, इज्जत के मेयार खत्म हो जाएंगे, जिल्लत भूल जाएंगे, सारी अकल इनकी मसख हो जाएगी। जब ये टेढ़े हो जाएंगे तो सारा निजाम अल्लाह ताला इनके खिलाफ कर देगा और बातिल को कुव्वत देकर इनको सर के ऊपर बैठा देगा। जब समरकंद पहला शहर जो चंगेज खान ने फतह किया मुसलमानों का, समरकंद था, समरकंद, तो मस्जिद के मिंबर पर खड़ा हुआ था, लंबी समूरी टोपी पहने हुए, कहने लगा जिस अल्लाह का तुम मानते हो, मैं उसी अल्लाह का भेजा हुआ अजाब हूं, मैं उसी अल्लाह का भेजा हुआ अजाब हूं। तो जब नाफरमानी आती है, यानी हम टेढ़े हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हम पर औरों को लाता है, और फिर जब हम तौबा करते हैं और सीधे हो जाते हैं, फिर अल्लाह निजाम को सीधा चला देता है, फिर उनको पस्त कर देता है, फिर अपनों को ऊंचा कर देता है। तो खजल सही उदू वाला, जब मेरी उम्मत हुकूमत का माल हड़प करेंगे, हुकूमत के माल को नाजायज तरीकों से खा जाएंगे, एक मतलब। दूसरा मतलब, जब मेरी उम्मत का पैसा चंद हाथों में आ जाएगा और अक्सरियत फकीर हो जाएगी। इज्जत तो खजल सही उदू वाला, ये दोनों मतलब इस वक्त मौजूद हैं। पैसा चंद हाथों में है और हुकूमत के कारिंदे अक्सर बदजानत हैं, और वो हुकूमत का पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं, हुकूमत फकीर हो रही है। वाले अमानत मगनमा, लोग अमानत खा जाएंगे। वह ज़कात मगरमा, ज़कात का इनकार हो जाएगा। वो तो इल्म गैर दीन, इल्म दीन हासिल करेंगे दुनिया कमाने के लिए। वह अता अर्रजुल ज़ौजतहु, लोग बीवियों के फरमाबरदार हो जाएंगे। वह अक्का उम्महु, माओ के नाफरमान हो जाएंगे। वह अदना सदीक़हु, दोस्त को करीब करेंगे। वह अक्सा अबाहु, बाप से बदसलूकी करेंगे। वह सादल कबीलत फासिक़हुम,
कबीले का सरदार नाफरमान शख्स होगा। वकान रईसुल कौम अरगलहम, हुकूमत नाअहल और जलील इंसानों के हाथ में होगी। वयकरिम अर्रजुल मखाफत शर्रिही, एक दूसरे को मिलेंगे मतलब के लिए मोहब्बत के लिए नहीं। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, गाने वालियों का एहतराम शुरू हो जाएगा, फाहिशा औरतों का एहतराम शुरू हो जाएगा और वो मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगी और गाने के आलात घर घर में मौजूद हो जाएंगे। वर्तफ़तिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, झगड़े शुरू हो जाएंगे। और शुरबतुल खुमूर, और शराब पी जाएगी। वलूसल हरीर, और लोग रेशम पहनेंगे। और जब ये मेरी उम्मत करेगी, जब ये काम मेरी उम्मत करेगी तो फिर क्या होगा, इन पर सुर्ख आंधियां आएंगी, रिहन हमरा, व ज़लज़लतन, ज़लज़ले आएंगे, व मसखन, ये मसख होंगे, व क़ज़फ़न, इन पर पत्थरों की बारिश होगी, व आयात मुतताबिआत, इन पर ऊपर नीचे अज़ाब आएंगे। जब तक वे तौबा नहीं करेंगे अल्लाह का निजाम नहीं बदलेगा। तो हम उम्मत वसत हैं, उम्मत वसत। जब हम टेढ़े होंगे तो सारा निजाम टेढ़ा हो जाएगा, और जब हम सीधे होंगे तो सारा निजाम सीधा चले। हमारा सीधा होना क्या है कि हम अल्लाह के गवाह हैं। अल्लाह है, कायनात का मालिक है, बहर बर का खालिक है, बहर बर का पर काबिज है। ये गवाही हमने सारी दुनिया को, शुहदा अलन नास। यूं लगता है जैसे अल्लाह ने पूरी दुनिया को कमरा अदालत बना दिया है। एक तरफ अल्लाह के वकील खड़े हैं, एक तरफ शैतान के वकील खड़े हैं। अल्लाह के वकील अंबिया हैं, शैतान के वकील इंसान भी हैं और जिन्नात भी हैं। इन दोनों के दलाइल बड़े गर्मा गर्म चल रहे हैं। शैतान के वकील दलाइल दे रहे हैं, सहीहा कलिमातु वअदून, मौत के बाद कुछ नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। और रहमान के वकील दलाइल दे रहे हैं, इन्ना वअदल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा सच्चा है, सच्चा है, तुम्हें जिंदा करेगा, तुम्हें जिंदा करेगा। शैतान के वकील कह रहे हैं, इन्ना लमरदूदून फिल हाफ़िरा इज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा, भला कब्रों में जाकर कोई वापस आया? कब्र से निकल कर कोई वापस आया? हड्डियां पुरानी होकर बिखर गई, कोई जिंदा होकर आया? रहमान, इशारा कुरान से बता रहा हूँ, दोनों दलाइल अल्लाह कुरान में बता रहा है, ताकि हम आंखों से नहीं दिल की आंखों से भी पहचान सकें कि क्या हो रहा है। और रहमान के वकील दलाइल दे रहे हैं, रहमान के वकील दलाइल दे रहे हैं, मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से तुम्हें अल्लाह ने बनाया, इसी में तुम्हें वापस भेजेगा और इसी से तुम्हें दोबारा जिंदा कर देगा। जैसे अल्लाह ताला मुर्दा जमीन को जिंदा करता है, ऐसे ही एक दिन तुम्हें भी जिंदा करके दिखा देगा। जैसे मुंतशिर जर्रात को जोड़कर अल्लाह ताला जमीन को सरसब्ज़ कर देता है, तुम्हें भी ऐसे अल्लाह ताला मुंतशिर जर्रात को जोड़कर अक्सर नो इंसान बना देगा। और शैतान ने कहा, इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया, यही है दुनिया की जिंदगी, मजे कर लो, मौज कर लो, मेला कर लो। और रहमान के वकीलों ने कहा, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखा है, ये धोखा है, ये फरेब है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसके चक्कर में ना हो। ये एक बड़ा ताकतवर सिलसिला दलाइल का चला। रहमान के वकीलों की दलील है कि अल्लाह है और वहदहु ला शरीक है। ये गवाही हमने देनी है सारी दुनिया के इंसानों में आकर। शैतान के वकील कह रहे हैं, ही कोई कहाँ है? कहाँ है तो दिखाओ, कहाँ है तो दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा रब? कोई नहीं, कोई नहीं। मा युहलिकुना इल्ला दार, हमें तो नेचर मारती है, हमें तो फितरत मारती है, जिसको मदर नेचर कहते हैं। मदर नेचर, हम तो फितरत से पैदा होते हैं, फितरत से मर जाते हैं। अल्लाह है ही कोई नहीं, अल्लाह है ही कोई नहीं। तो हम इसकी गवाही देने हैं कि अल्लाह है। पहले अपने नबी की गवाही सुनो कि हमारे नबी ने कैसे गवाही दी। हमारे नबी अंबिया दलील दे रहे हैं, अंबिया दलाइल दे रहे हैं, हम भी उनके साथ शरीक हैं। तो अपने नबी की सुनो, अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्द, ऐ जमीन आसमान के बनाने वाले, आलिमुल गैब वश्शहादा, गैब और हाजिर को जानने वाले, ज़ल जलाल वल इकराम, ऐ बड़ाई बुजुर्गी और इज्जत वाले, अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्द, आलिमुल गैब वश्शहादा, ज़ल जलाल वल इकराम। कितने बाइज्जत नामों से पुकारा। फइन्नी आहद इलैका फी हाज़िहिल हयातिद दुनिया, मैं इस दुनिया की जिंदगी में तेरे साथ अहद करता हूँ। व उशहिदुका, और मैं तुझे अपना गवाह बनाता हूँ। व कफ़ा बिका शहीदा, और तुझसे बड़ा कोई गवाह है कोई नहीं। अन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, मैं गवाही देता हूँ तू एक है, तेरे सिवा कोई नहीं। वहदक, तू अकेला, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं। लकल मुल्क, बादशाही तेरी, वलकल हम्द, सब तारीफ तेरी। लकल मुल्क वलकल हम्द व अंत अला कुल्लि शैइन कदीर, और तू हर चीज पर कादिर मुतलक। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुक, और अपनी गवाही खुद दे रहे, और मैं गवाही देता हूँ कि मैं मोहम्मद तेरा बंदा हूँ, तेरा रसूल हूँ।
वाशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना वादका हक़ व लिक़ाअका हक़ वल जन्नत हक़ वस्साअत आतियतुन ला रैब फीहा व अन्नका तबअसु मन फिल क़ुबूर। मैं गवाही देता हूँ या अल्लाह, तेरी मुलाकात सच है, तुझसे मुलाकात होने वाली है, तेरा वादा सच्चा है कि तू जिंदा करेगा, जन्नत भी हक है, क़यामत भी हक है, और तू मुर्दों को जिंदा करेगा। एक तबका जन्नत में जाएगा, एक तबका जहन्नम में जाएगा। ये अपने नबी की देखो कैसे खूबसूरत गवाही। यही गवाही देना हमारे जिम्मे है, ये सारे आलम के इंसानों को बताना कि अल्लाह एक वादहू ला शरीक है, जिसके हाथ में सब कुछ है, सब उसके इरादे से बना, उसके इरादे से बाकी है, उसके इरादे से जिंदगी है, उसके इरादे से मौत है, उसके इरादे से मरी के पहाड़ों ने सब्ज चादर पहनी, कोयटा के पहाड़ों ने स्याह चादर पहनी, सकरदू के पहाड़ों ने सफेद चादर पहनी, उसी के इरादे से समंदरों का पानी कड़वा हुआ, मरी के चश्मों का पानी मीठा हुआ, उसी के इरादे से दरियाओं का रुख शमाल को चला, उसी के इरादे से लकड़ी में से फल निकला, फल का रंग उसने अपनी कुदरत से चढ़ाया, मिठास अल्लाह ने अपनी कुदरत से भरी, जायके अल्लाह ने अपने कुदरत से भरे। एक वक्त में वो अल्लाह, एक वक्त में मैं बयान कर रहा हूँ, अब इसमें लिख तो नहीं सकता, मैं बयान कर रहा हूँ तो नमाज तो नहीं पढ़ सकता, मैं बयान कर रहा हूँ तो रोटी तो नहीं खा सकता। एक वक्त में एक ही काम इंसान करेगा। मेरा और आपका अल्लाह वो है जो एक पल में नबातात का जहान भी चलाता है, हैवानात का जहान भी चलाता है, इंसानों का जहान भी चलाता है, पानियों का जहान भी चलाता है, मीठों का जो मीठे पानी को भी चलाता है, कड़वे को भी चलाता है, आसमानों को भी चलाता है, नूरानियों को भी देखता है, नूरियों को भी देखता है, नारियों को भी देखता है। एक वक्त में फूलों में रंग भर रहा, कहीं फूल मुकम्मल हो चुके तो उनमें खुशबू कर रहा, कहीं बूर आ चुका, कहीं फल बन रहा, कहीं डोडी लग रही, कहीं जायके भर रहा, कहीं खुशबुएं भर रहा, किसी को मीठा बना रहा, किसी को कड़वा बना रहा, किसी को सफेद रंग दिया, किसी को सब्ज रंग दिया, किसी को सुर्ख रंग दिया, किसी में जहर भरा, किसी में शहद भरा, किसी में मिठास भरी, किसी में कड़वाहट भरी, किसी अंडे से मोर निकाला, किसी अंडे से मुर्गा निकाला, किसी अंडे से मगरमच्छ निकाला, किसी अंडे से सांप निकाला, किसी अंडे से तीतर निकाला, किसी अंडे से कबूतर निकाला, किसी अंडे से बच्चा निकाला। इतने सारे निजाम को चलाते हुए कभी खता न खाई कि कोयले के कौवे के अंडे से तीतर निकल आए, तीतर के अंडे से सांप निकल आए, सांप के अंडे से मगरमच्छ निकल आए, कछुए के अंडे से मछली निकल आए। लाखों करोड़ों अरबों मछलियों ने अंडे दिए, मच्छरों ने अंडे दिए, मक्खियों ने अंडे दिए, शहद की मक्खी ने अंडे दिए, परिंदों ने अंडे दिए, कोई घोंसले में, कोई पानी में, कोई जमीन के अंदर, कोई जोहर में, कोई गंदे पानी में, कोई मीठे पानी में, कोई ऊपर, कोई नीचे, किसी ने टोकरे के नीचे, किसी ने पत्तों के नीचे, किसी ने दरख्त के नीचे। सारी कायनात के अंडों पर नजर रखते हुए मच्छर में से मच्छर निकाल रहा, मोर में से मोर निकाल रहा, उसके रंग भी भर रहा, उसके रंग भी बदल रहा, उसकी टांगों को उसके हिसाब से बना रहा, मुर्गादी के अंदर पर्दे लगा रहा था कि तैरना इसको आ सके, और उकाब के पंजे बना रहा था कि छपट्टा मार सके, चोंच को टेढ़ा कर रहा था कि गोश्त को खा सके। इस सारे निजाम को चलाते हुए इंसान की शक्ल बना रहा, माँ के पेट में नुस्खा ठहरा रहा, उस पर उसको आलका बना रहा, उससे मुजरा बना रहा, उसमें हड्डियां भर रहा, कहीं नाक लगा रहा, कहीं कान लगा रहा, कहीं रूह डाली जा चुकी, कहीं बच्चा हरकत में आ चुका, कहीं बाहर आने को तैयार, कहीं बच्चा बन रहा, कहीं बच्ची बन रही, कहीं नाकिस बन रहा, कहीं मुकम्मल बन रहा, कोई पहले गिर रहा, कोई पूरा होके आ रहा। उसी वक्त में माँ की गोद में बच्चा आ चुका है, उसे दूध पिलाने का निजाम चला चुका, और किसी के दांत निकल चुके उसे रोटी खिलाने का निजाम चला चुका। कोई मरने को जा रहा है तो उसके लिए कब्र का निजाम, उसके लिए कफन का निजाम, बीमारों का निजाम अलग, सेहतमंद का अलग, हवाओं में उड़ने वालों का अलग, जमीन पर चलने वालों का अलग, 2 पाए का निजाम अलग, 4 पाँव वालों का अलग, रेंगने वालों का अलग, तैरने वालों का अलग, छुपने वालों का अलग, रात को निकलने वालों का निजाम अलग, दिन में निकलने वालों का निजाम अलग, अंधेरे में दिखा रहा, उजाले में दिखा रहा। सारी कायनात के बहरो पर एक एक जर्रे पर पूरी निगाह रखने के बाद न थकता है, न सोता है, न गाफिल है, न जाहिल है, न फैसले गलत करता है। भाइयों, अल्लाह से असर लो, अल्लाह के वास्ते अल्लाह से असर लो। किन लोगों से असर लेके? अपने जैसों से असर लेके। नाज़िम साहब, MPA साहब, चौधरी साहब, और ये आप जैसे इंसान हैं, ना अपनी मर्जी से ये जिंदा हैं, ना अपनी मर्जी से ये मर सकते हैं। अल्लाह इनका पेशाब रोक दे, ये चला नहीं सकते। अल्लाह चला दे, ये रोक नहीं सकते। अल्लाह ने लिटा दे, ये उठ नहीं सकते। उठा दे, ये बैठ नहीं सकते। मार दे, ये जी नहीं सकते। अल्लाह इनको जलील करे, इनको इज्जत नहीं दे सकता। अपने जैसों से असर लेकर हमने जिंदगी गुजारी, इस पर तौबा करो। एक अल्लाह की जात से असर लेना सीखो।
جس کے قبضہ قدرت میں زمین بھی ہے, آسمان بھی ہے, فضا بھی ہے, ہوا بھی ہے, کائنات بھی ہے, آگ بھی ہے, برق بھی ہے, بھاپ بھی ہے, ستارے بھی ہیں, سورج بھی ہے, چاند بھی ہے, ہواؤں کے ذرات بھی ہیں. ایک ایک چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے, اس اللہ کا اثر دل میں اتارنا یہ اس امت کی ذمہ داری. ہم امتن وسطا, شہداء شہداء شہداء, گواہ بتانے والے. کیونکہ آپ کو پتا ہے آخری فیصلہ تو پھر گواہوں پر ہوتا ہے. گواہ, وکیلوں نے دلائل دی, مدعی کے وکیل کی دلیل آئی, مدعا کے وکیل کی دلیل آئی, پھر گواہ لگے. جس کے گواہ لگ گئے اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا. ادھر انبیاء کے دلائل, ادھر شیطانوں کے دلائل. تو اپنی خوش قسمتی دیکھو, اللہ نے امت محمد کو بولا کہ تم آ کر گواہی دو. میں ہوں کہ نہیں ہوں, گواہی دو. میں ہوں, گواہی دو. میرا نبی سچا ہے, گواہی دو. قرآن میری کتاب ہے, گواہی دو. جنت ہے, اس کی گواہی دو. دوزخ ہے, اس کی گواہی دو. اسلام کامل مذہب ہے, اس کی گواہی دو. اس گواہی کے لیے ہمیں گھروں سے نکالا گیا. اخرجت للناس. تو میں نے اس آیت سے لفظ شہادت ہے نا, یہ ایک تشریح اخذ کی ہے کہ گویا ساری کائنات کمرہ عدالت ہے اور ہزاروں سال سے نبیوں اور شیطانوں کے دلائل چل رہے. اب فیصلہ ہونے کے لیے وکیلوں گواہوں کو بلایا جائے. تو گواہ کو پرکھا جاتا ہے سچا ہے کہ جھوٹا ہے. تو ہمارے یہاں عدالت میں قسم اٹھوائی جاتی کہ تم جو کہو گے سچ کہو گے. اس سے پہلے جب اسلامی سلطنت تھی تو ایک محکمہ تھا باقاعدہ اس کے لیے, جو جس کو ہم CID کہتے ہیں. CID وہ سارے شہر کے لوگوں پر نظر رکھتا, ایک ایک کے پورے حالات ان کے سامنے تھے. جب کوئی مقدمے میں گواہ بن کے پیش ہوتا تو جج اس محکمے کے لوگوں سے پوچھتا یہ آدمی کیسا ہے. وہ کہتے یہ آدمی ٹھیک ہے تو اس کی گواہی کو قبول کیا جاتا تھا. اگر وہ محکمے کے لوگ کہہ دیتے یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے تو جج اس کی گواہی کو رد کر دیتا تھا, چاہے کہ تمدید کرنا ہو. کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں, تو ہمارے جج قسم لیتے ہیں کہ تم جو کہو گے سچ کہو گے. تو ہم سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں, ہم کھڑے ہیں کہ کھوٹے ہیں, اس کے لیے کون گواہی دے؟ سبحان اللہ. اس کے لیے کون گواہی دے کہ ہاں بھائی یہ جو گواہ ہیں بالکل ٹھیک لوگ ہیں, یہ گواہ ٹھیک ہیں, یہ گواہ کھڑے لوگ ہیں, یہ گواہ کھوٹے نہیں ہیں. تو اس کے لیے گواہ, اس کے لیے کس کو اللہ نے بلایا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. میرا حبیب تمہارے حق میں گواہی دے رہا ہے کہ میری امت سچی ہے, جھوٹی نہیں ہے. تو ہماری کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم توحید کے گواہ, رسالت کے گواہ, جنت اور جہنم کے گواہ, قرآن کے گواہ, اسلام کے گواہ. ہم سچے کے جھوٹے ہماری پاک دامنی بیان کرنے کے لیے ہمارا نبی گواہ بن کے آ رہا ہے. یکون الرسول علیکم شہیدا. بڑے اونچے کام سے ہم نیچے گرے, پیسہ کمانا مقصد بن گیا, دنیا کی عزتیں مقصد بن گئی. نہیں, اس سے بلند و بالا ہمارا مقام ہے. ہم اللہ کی توحید کی گواہی دینے آئے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے آئے ہیں. ایک ہی ہادی ہے, وہ ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب جسے کامیابی چاہیے اسے محمدی بننا ہوگا, جو ناکامی سے بچنا چاہے اسے محمدی بننا ہوگا. جسے عزت چاہیے وہ محمدی بنے, جو ذلتوں سے بچنا چاہے وہ محمدی بنے, جو جنت میں جانا چاہے وہ محمدی بنے, جو جہنم سے بچنا چاہے محمدی بنے, جسے اولاد نیک چاہیے وہ محمدی بنے, جسے سکون اور اطمینان چاہیے وہ محمدی بنے, جسے دنیا میں اللہ کی رضا چاہیے وہ محمدی بنے. ساری دنیا کو یہ بتانا کہ آپ صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہی کامیابی کی ضمانت ہے, باقی ساری راہیں, سارے راستے ذلت, پستی, تباہی, بربادی. ایک ہی راہ کھلی ہے اللہ تک پہنچنے والی, ایک ہی راستہ ہے, اس پر چل کر ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی زندگی, یہ ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کر ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں. باقی سارے راستے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے ہیں. یہ گواہی ساری خلقت کو دینا, ساری دنیا کے انسانوں کو بتانا. اب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چلے گی تو آج کے یورپ کی زندگی کیسے چل سکتی ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو وہ اپنی شریعت نہیں چلا سکتے. ہم مغرب کے اندھی تہذیب کے پیچھے کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ جہاں جا کے سورج بھی اندھا ہو کے غروب ہو جاتا ہے, ہم مغرب کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا رہبر موجود, ہادی موجود, کامل اکمل رسول موجود,
اس के बाद किसी और की तरफ देखना, इससे बड़ी गुमराही कोई नहीं। ये दूसरी गवाही है जो सारी दुनिया को बतानी है। आज पहले मुसलमान है तो मुसलमान ही हुजूर का तरीका छोड़ेगा। आपके पहाड़ के स्कूलों में भी बच्चे गले में टांगियां लटका के स्कूल जा रहे हैं। क्या जुल्म सितम हुआ। मासूम बच्चे, पहाड़ी लोग अपनी फितरत पर मौजूद, अक्सर पहाड़ों में दीन मौजूद है। अब भी मैदानों की निस्बत, मैदान की निस्बत पहले से तो घटा हुआ है, मैदान की निस्बत अब भी ज्यादा है। जब यहाँ भी मासूम बच्चे गले में टांगियां लटका के स्कूल जा रहे हों तो मालूम हुआ कि यहाँ भी आग लग चुकी है, यहाँ भी घर जलने को है, अब क्षमा बुझने को है। जो कौम अपने बच्चों को हुजूर का लिबास नहीं पहना सकती, वो कौम धरती बनाने की हकदार कैसे? यानी बिल्कुल हम सो गए, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहां से अल्फाज लाऊं जो आप अपने भाइयों के सीने में उतार दूं, कहां से कोई आला लाऊं जो दिल चीर कर इनके अंदर में हुजूर की अजमत को दिखा दे। किस बेदर्दी से सुन्नतों को जबा करते हैं, किस बेदर्दी से हुजूर की शरीयत का मजाक उड़ाया जाता है। जो आपके लिए दुनिया से रोता रोता चला गया, उसकी शरीयत का भी मजाक, उसके तरीकों का भी मजाक, जो आज भी देरी धार से खंजर लेकर आपकी जान पर भी वार कर रहे, आपके माल पर भी वार कर रहे, वही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हो गए, वही बड़े बन गए, उन्हीं के तरीके बाइज्जत बन गए। जिसकी नबूवत एक किस्सा तो मशहूर है ना, आप दरख्त ने गवाही दी, आपने दरख्त को बुलाया, उसने गवाही दी कि आप अल्लाह का रसूल। एक किस्सा आमतौर पर सामने नहीं आपको बताता। आप किसी फरमाते एक बद्दू गुजरा, आपने कहा मुझे अल्लाह का नबी मानते हो कि नहीं मानते? आपने फरमाया ये जो खजूर का दरख्त है इसकी वो शाख अगर उतर के मुझे नबी माने तो फिर मुझे नबी मानोगे? तो मैंने कहा हाँ मानूंगा। तो आपने दरख्त को नहीं बुलाया, शाख को इशारा किया, शाख को। शाख अपनी जगह से कटी और तने के साथ लग के यूं नीचे उतरी और अपने सर के बल चलती हुई हुजूर के सामने से खड़ी हुई। आपने फरमाया बोल मैं कौन हूं? उनका अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। आपने कहा बोल मैं कौन हूं? का अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। कहा बोल मैं कौन हूं? का अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। आपने फरमाया जा वापस चली जा, जा वापस। कोई है दुनिया की ताकत जो इस कटी शाख को फिर जोड़ दे, फिर इसे हरा कर दे? अपने नबी की शान तो देखो, वो शाख वापस ही दरख्त पे चढ़ी, जहां से टूटी थी वहां जाके जुड़ गई जैसे यहाँ से टूटी ही कोई नहीं। एक एक पत्ते को पता है कि ये अल्लाह का रसूल है, हम उसी की जिंदगी को छोड़ के कूड़े के ढेर पर फेंक दें, तुम्हें नजात कहां से मिलेगी, इज्जत कहां से मिलेगी? ये हमारे जिम्मे है सारी दुनिया के इंसानों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हुए बताना कि अब ये रहबर है, ये रहबर है, इसके पीछे चलो। खंदक के मौका पर एक बच्ची जा रही, हाथ में खजूर, एक मुठ खजूर। आपने कहा बेटी क्या है? कहा जी अपने मामों को अब्बा को खजूरें देने जा रहे हैं। हमने कहा मेरे पास ले आ। आपने अपनी चादर बिछाई और खजूरें लेकर ऊपर डाल दी। एक मुठ में 50 खजूरें होंगी, 20 होंगी, 30 होंगी। आ जाओ भाई बिस्मिल्लाह करो, आ जाओ भाई बिस्मिल्लाह करो। 10-12 आदमी चादर के गिर्द बैठ गए। जो हाथ बढ़ाते खजूर उठाने के लिए तो खजूरें एकदम दुगनी हो जाती, फिर खाते दुगनी हो जाती, फिर खाते दुगनी होती। वो एक मुठ खजूरों को 1000 आदमी पेट भर के खा के उठ गया और खजूरें पहले से दुगनी होकर पूरी चादर पे फैल चुकी थी। आपने बाकी को लपेटा का जाओ इस बच्ची के घर पहुंचा दो, जिसकी इताअत के लिए नबातात सर झुका दें, हैवानात सर झुका दें, जिन्नात सर झुका दें, बाहर बर जिसके लिए सर झुका दे। जब ये जो खबर फतह हुआ तो एक जगह माले गनीमत में आया, वो आगे बढ़ गया, या रसूल अल्लाह आप आखिरी नबी हैं, मैं अपनी नस्ल का आखिरी गधा हूं, मेरे बाप दादा पर नबियों ने सवारी की है, आप मुझे अपने हिस्से में रख लें, आप मुझे अपने में रख लें। तो आपने उसको अपने लिए कबूल फरमाया, उसका नाम था याफूर, याफूर। तो आप गाहे गाहे उस पर सवारी फरमाया करते। कभी किसी को बुलाना होता तो उसे फरमाते जा फलां को बुला के ले आ, तो आदमी नहीं आता था उसको भेज देते, वो जाकर सीधा उस सहाबी के दरवाजे में टक्कर मारता, वो बाहर निकल के देखता तो याफूर खड़ा होता, तो समझ में आ जाता कि रसूलुल्लाह ने बुलाया है। जिस दिन आपका इंतकाल हुआ उस दिन याफूर की भी हाय हाय थी। ओहो कैसे जालिम हो गया,
जिसकी जुदाई ने ऐसे बेवकूफ जानवरों को रुला दिया, जिसको बेवकूफ का नाम जो गधा कहते हैं। उस दिन याफूर बेकरार होकर गलियों में फिर रहा था और रो रहा था। आखिर उससे न रहा गया और जाके कुएं में छलांग लगा दी और जान की बाजी हार गया। आपकी ऊँटनी आजबा, जिस पर आप अक्सर सवारी फरमाया करते, जिस दिन आपका इंतकाल हुआ तो उसकी आंखों से आंसू जारी, और उसने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, रोटी प्यासी ने तड़प तड़प के जान दे दी। आपके बाद ना एक घोंट पानी पिया, ना एक चमचा घास खाया। इस जात ने जानवरों को गमगीन कर, जो अपना इश्क जानवरों में छोड़ गया, उसी का कलमा पढ़ने वाले मरी वाले क्या कर रहे हैं, और मरी में आकर बाकी मुसलमान क्या कर रहे हैं। इसकी अजमत और हैबत के सामने जानवर भी सर झुका। बेजान बेजान खजूर के तने पर आप टेक लगा के खुतबा देते थे। जहां वो तना था, मजमा ज्यादा हो गया, मिंबर की जरूरत पड़ी, यहाँ मिंबर बना, ये तना खजूर, इधर हमारे नबी का घर, इधर घर, आप आते टेक लगा के खुतबा देते। आज जुमे का दिन है, आप तशरीफ लाए, इस तने को पार किया और पहला कदम रखा मिंबर की सीढ़ी पर, तो ये बेजान खजूर का तना ये चीख पड़ा, ऐसे रोया जैसे हमला ऊँटनी रोती है। खुश तने को भी अपने महबूब की जुदाई बर्दाश्त न हुई। हम तो धड़कते दिल वाले मुसलमान, उसी का कलमा पढ़ने वाले, उसी की तो सारी जिंदा। हमें 2 महीनों में मरी में जो कुछ आकर मुसलमान करते हैं, ये पहाड़ कब के हैं अपने अंदर ले चुके होते हैं, जमीन कब की फट चुकी होती, आसमान टूट पड़ता। उस मदीने वाले की दुआएं हैं जो रो 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 23 बरस रो रो के अल्लाह को मनाया कि इन पर ऐसा अजाब नहीं लाऊंगा कि इन्हें धरती से मिटा दूं। अगर आपकी ये दुआएं न होती तो किस्सा तमाम हो चुका था आज से कई साल पहले। बेजान तना तड़प उठा, उससे आपकी जुदाई बर्दाश्त न हुई। आप वापस लौटे, उस तने को ऐसे गले से लगाए, फिर उससे ऐसे मुंह करीब करके उससे बातें शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता। तो इरशाद फरमाया कि मैंने पता क्या बात, मैंने इससे सौदा किया है, मैंने इससे कहा है मजमा ज्यादा हो गया, मुझे ऊपर मिंबर पे जाने की जरूरत है, मैं तेरी जुदाई के बदले में तुझसे वादा करता हूं तुझे जन्नत का दरख्त बना दूंगा, जन्नती तेरे मजे खाएंगे। तो इस पर वो चुप हुआ और चुप होने के बाद उसकी हिस्सियां बाकी रही, जैसे बच्चा ज्यादा रोए तो चुप होने के बाद ये आवाज खुतबे के दौरान चल रही थी, वो अपने रोने को काबू कर रहा था। आपने फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ लम अहफ़ज़िनहु लम यज़ल बाक़ियन फ़िराक़ रसूलिल्लाह इला यौमिल क़ियामा, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैं इसे सीने से न लगाता तो क़यामत तक मेरी जुदाई से तड़पता रहता, रोता रहता। मेरे भाइयों, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत दिलों में बिठाना ये हमारा काम है। शुहदा अलन नास, हम इसके लिए आए हैं, हम तो खुद आपकी अज़मत को भुला बैठे, खुद आपके तरीकों से बगावत कर दी। मोटर रोड पर चढ़ने से पहले लाहौर में एक पेट्रोल पंप है, वहां पर हवा चेक करने का वो लगी जो मशीन, हर मोटर वहां से हवा चेक करवाती, कम ज्यादा तो नहीं, कम ज्यादा तो नहीं, अगर कम ज्यादा होगी तो उलट जाने का खतरा है। एक में 3600, एक में 2500, एक में 2800, एक में 2700, 1 पाउंड 2 पाउंड आधा पाउंड की कमी बेशी में खतरा है कि गाड़ी उलट जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को छोड़ने के बाद कोई खतरा नहीं कि जहन्नम में जा गिरेंगे, सारे तरीकों से बगावत हो गई। फिर उसकी वफा देखो, हम जिनके पीछे चल रहे हैं उनका जुल्म और सितम देखो, उनकी जुल्म और सितम भरी दास्तान देखो। कौन सा धरती का चप्पा है जहां इस उम्मत की बेगोर कफन लाशें न पड़ी हों? कौन सा जुल्म का ऐसा वार है जो बातिल ने हम पे ना किया हो? उनकी टाइयां पहनाकर बच्चों को स्कूल भेजना। और कौन सा ऐसा मकाम है जिस पर हमारा नबी ना रोया हो?
اور نہ तड़पा हो। और कौन सा दुनिया का ऐसा फकीर है जो पेट पे दो दो पत्थर बांध के दिन गुजारता हो। देखो तो सही, जिसके सामने सारी दुनिया बांधी बन के आ गई कि या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो मैं सोना चांदी बन के पहुंच जाऊं, ये सारा इख्तियार मिलने के बाद भी पेट पे पत्थर बांध के जिंदगी गुजार, एक वक्त खाई एक वक्त नहीं खाई, 3-3 दिन का फाका आम बात है, 2-2 महीने घर में चूल्हा नहीं जला, जिसके लिए जन्नत दुनिया में उतरने को तैयार हो, सोने चांदी के घर दुनिया में बनने को तैयार हो। अपनी उम्मत के गरीबों की हमदर्दी में सारी सारी रात रोटे काट ली, एक चादर में काट दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में फरावानी हो गई। सहाबा ने कहा अब तो उमर को तरीका बदलना चाहिए, इतनी तंगी ठीक नहीं। तो लोगों ने कहा इनको समझाए कौन, उनका भेजो हजरत आयशा और हज़रत हफ्सा को, हुजूर की बीवियां, इनका एहतराम जरूर करेंगे। तो ये दोनों माएँ आई हजरत उमर की खिदमत में। कामिरुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने बात छोड़ी, एक बार हफ्सा ने छोड़ी, पहला दोनों ने बात की कि हुजूर का जमाना तंगदस्ती का था, अबूबकर सिद्दीक का जमाना भी तंगदस्ती का था, अब तो अल्लाह ने फरावानी दे दी, मुल्क फतह हो गए, जमाना कदमों में आ गया, अब तो आप कुछ अच्छे कपड़े पहने, कुछ नरम रोटी खाएं, कुछ खिदमत के लिए नौकर रख लें, बादशाह वफद आते हैं मिलने के लिए, कोई अच्छा लिबास पहना करें। ये बात शुरू की। हज़रत उमर का रंग बदल रहा। जब उन्होंने बात खत्म की तो कहने के तुम्हें किसने ये सबक पढ़ा के भेजा मेरे पास, वो कहने लगी पहले आप जवाब दे दें। कहने लगे अगर मुझे पता चल जाए तो मैं मार मार के उनके चेहरे काले कर दूं। फिर हजरत हफ्सा की तरफ मुतवज्जो जो बेटी थी, बेटी भी थी दोनों, कहा हफ्सा तू बोल, तू घर वाली है, क्या अल्लाह के नबी ने जिंदगी भर कभी 2 वक्त खाना खाया? कभी जिंदगी में 2 वक्त खाना खाया? कहने के नहीं। तो वो याद है ना, एक वक्त खाया तो शाम को छोड़ दिया, शाम को खाया तो सुबह छोड़ दिया। कभी मुझे याद। का तेरे घर में हुजूर का सबसे बेहतरीन खाना क्या था? अनछने जौ की रोटी जो सिरके के साथ खाई। कभी कभी घी नहीं होता था, और घी के कनस्तर के नीचे जो मैल कुचैल भी जमा होता था वो तो निकाल के ऊपर रोटी को चौपड़ देती थी, तो आप बड़े खुश होकर खाते थे। आज तो बड़ी मजेदार रोटी है। ये जौ की रोटी भी एक वक्त खाई, दूसरे वक्त नहीं खाई। याद है जी? का तुम्हें याद है एक दफा तुमने मेज पे खाना रख के दिया था तो अल्लाह के नबी का रंग बदल गया था, उन्होंने उठा के जमीन पर रखा था और जमीन पर बैठ के खाया था। हाँ जी याद है। का तुझे याद है तेरे घर में हुजूर का बिस्तर क्या था? एक टाट जिसे जो रात को दौरा करती थी, दिन में सीधा करती थी। एक रात तूने दोहरे की बजाय चौड़ा कर दिया, एक तय और लगा दी। तो सुबह हुजूर ने पूछा था हफ्सा मेरा बिस्तर बदल दिया? का नहीं या रसूल अल्लाह वही है। तो कहा ये नरम कैसे हो गया? का मैंने एक तय और लगा दी थी। तो हुजूर ने फरमाया था इसे वैसे ही बिछा दो, इसकी नरमी ने मुझे रात को उठने से रोके रखा। का तुम्हें याद है तो बिलाल आते थे हुजूर से कहते थे या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो गया तशरीफ लाएं, तो वो फरमाते थे बिलाल मैंने कपड़े धो के लटकाए हैं, अभी सूखे नहीं, दूसरा जोड़ा कोई नहीं के पहन के आके नमाज पढ़ा सकूं। नमाज में देर हो जाती थी कि कपड़े नहीं होते थे पहन को पढ़ाने के लिए, तो वो खुश होते थे, आप पहनते थे, फिर आके आप पढ़ाते थे। तो तुम्हें याद है एक दफा एक औरत ने 2 चादरें हदिया को भेजने को कहा था, एक भेजी दूसरी में देर हो गई, तो हुजूर के पास उस दिन और कपड़ा था ही नहीं पहनने को, एक चादर बांध के नमाज पढ़ाई, गले में गांठ लगाकर चादर की जाकर नमाज पढ़ाई। ये सब तुम्हें याद है? कहा याद है। अच्छा जाओ उन्हें बता दो जिन्होंने तुम्हें भेजा है कि 3 मुसाफिर थे, 3 साथी थे जिनसे एक मंजिल थी, पहला चला वो पहुंच गया, दूसरा चला वो पहुंच गया, तीसरा रास्ते में है, अगर उन्हीं कदमों पे कदम रखता हुआ चलेगा तो पहुंच जाएगा, और अगर जरा भी इधर उधर हुआ तो मंजिल से भटक जाएगा। मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैं अपनी जान को इसी तरह मशक्कत में रखूंगा यहाँ तक कि मेरा अल्लाह मुझे अपने साथी से मिला। हालांकि बख्शी बख्शा जिनको अल्लाह के नबी ने कहा मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, बख्शी बख्शा है। आपने कहा मैंने जन्नत में घर देखा, मैंने कहा किसका है? कहा गया उमर बिन खत्ताब का है। ऐसे लोग और इस मशक्कत में जिंदगी गुजारी, नमाज में खंजर लगा, मौत नजर आने लगी। अब देखो अल्लाह ने कैसे मिला दिया ना, दुनिया में भी मिला दिया, आखिरत में मिला दिया।
अपने बेटे से फरमाया जाओ हज़रत आयशा से पूछ के आओ कि उमर अपने साथियों के साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। इजाजत मिले तो फिर मुझे वहां ले जाना, नहीं तो मेरे जन्नतुल बकी में डाल देना। अब्दुल्ला बिन उमर आया हज़रत आयशा से पूछने के लिए, तो आगे बैठी अपने घर में रो रही थी। तो उन्हें अर्ज की, अम्मा जान मेरा बाप उमर अपने साथियों के साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और ज्यादा रोने लगी। फरमाया ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी, अपने बाप और खानिद के साथ मैं भी सो जाऊं, लेकिन अगर उमर का मुतालबा है तो वो इस जगह का मुझसे ज्यादा हकदार है, मैं इजाजत देती। जो कौम अपना माजी भूल जाए उन्हें मुस्तकबिल की राही कैसे सीखेंगे। तो बेटे वापस आएगा, अब्बा जान बस खुश हो गई हो, मुबारक हो, इजाजत हो गई। तो मुमकिन है मेरी शर्म में इजाजत दी हो, जब मेरा जनाजा पढ़ चुके फिर जाके दरवाजे पर रख देना, एक दफा फिर इजाजत मांगना, इजाजत मिले तो ले जाना, नहीं तो वापस कर ले जाना। तो जब मौत का वक्त करीब आया तो बेटे की गोद में सर रखा हुआ था, कहने का मेरा सर जमीन पर रख, उन्हें जमीन पर रख दिया। ये वो शख्स है जिसके इस्लाम लाने पर आसमान के फरिश्ते भी खुश हुए थे। जब आपने कलमा पढ़ा दार अरकम में, जैद इब्न अरकम के घर में, और सारे सहाबा ने खुशी से तकबीर पढ़ी तो जिब्रील भी उतर आया, या रसूल अल्लाह आपको खुशी हो रही उमर के इस्लाम लाने की? कहा। तो जिब्रील ने कहा आसमान के फरिश्ते भी खुश हो रहे उमर के इस्लाम लाने में। और ये शख्स है मैदान अरफात में, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह इस वक्त मेरे सारे साथियों पर फख्र कर रहा है और उमर पर खास तौर पर फख्र कर रहा है। तो कहने वो बेटा मुझे जमीन पर रख दे, तो उन्होंने सर गोद से निकाल के जमीन पर रख दिया, तो अपनी गाल ऐसे मट्टी में रख दिया और ऐसे ऐसे अपनी गालों को मट्टी में ऐसे ऐसे मारने लगे और कहने लगे उमर उमर तेरे रब ने तुझे हलाक, तेरे रब ने तुझे माफ ना किया तो तू हलाक हो, अल्लाह तूने उमर को माफ ना किया तो उमर बर्बाद हो गया। जिसकी माफी के परवाने आज से 10 साल पहले मिल चुके थे, वो मौत पर यूं हाय हाय करते हुए दुनिया से चले। और सहाबा रज़ियल्लाहु ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजे को उठाया गया और फिर आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर रख दिया। अब्दुल्ला बिन उमर आगे बढ़े, उन्हें दरवाजे पर दस्तक दी, फिर से बाप की वसीयत के मुताबिक तो कहा अम्मा जान मेरा बाप उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे हाजिर हो चुका है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। तो गाजा ने फरमाया मरहबन बन, उमर तशरीफ ले आए, मरहबा। अपनी चादर को उठाया और पर्दा करके बाहर निकले। तो सहाबा अंदर दाखिल हुए, सिद्दीक़ अकबर के साथ कबर खो दी गई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं मैंने अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस, मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो हज़रत अली खड़े हुए थे और हम यूं एक दफा मस्जिद में तशरीफ लाए तो आपने एक हाथ से अबू बकर को पकड़ा था, एक हाथ से उमर को पकड़ा था, तो आपने इस तरह दोनों के हाथ हिलाए, यूं हिलाए और कहा कज़ा नहशर यौमल क़ियामह, ऐसे क़यामत के दिन हम तीनों इकट्ठे उठाए जाएंगे। हाँ जिनको इतने बड़े मकाम मिले वो तो रोते पड़े हैं। हमारी कोई बात सीधी नहीं है और बगावत है, बगावत। सिर्फ हम नाफरमान नहीं है, हम बागी हैं, बागी। और फिर ऐसे गाफिल, फिर ऐसे गाफिल जैसे मौत हमारे लिए नहीं, जैसे क़यामत का दिन का हमारे लिए नहीं, जैसे जहन्नम और जन्नत का निजाम कोई ना हो, जैसे कोई ऊपर देखने वाला कोई ना हो, जैसे मौत कोई ना हो, जैसे रब सो चुका हो या गाफिल हो चुका हो। कल्ला कल्ला, नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। नहा लगा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, आग आज भी है और अल्लाह आज भी है। हम गाफिल हो गए, अल्लाह गाफिल नहीं हुआ। इस गफलत से लोगों को निकालने के लिए उम्मत वजूद में आई है। हमारे मर्दों का भी ये काम है, हमारी औरतों का भी ये काम है। इस काम ने उम्मत को बेचैन करके घरों से निकाला। इनके मर्द भी निकले, इनकी औरतें भी निकली, इनके बच्चे भी निकले, इनके बूढ़े भी निकले, इनके जवान भी निकले, मालदार भी निकले, फकीर भी निकले। सारी दुनिया अंधी है,
راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے، اندھیرے میں ہے شمع جلانا ہمارے ذمے ہے، بھٹک چکی ہے سیدھی راہ پہ لانا ہمارے ذمے ہے۔ ہماری بھی نسل ان کے برگر کھانے والی بن گئی۔ کیا ظلم و ستم ہے، ہم سے پیسے لے کر وہ ہمارے اوپر وار کر رہے، پھر بھی ہماری نسل غافل اندھی ہو کر جا رہی ہے۔ اس سے بڑا قصور ان کا ہے جو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے نہیں، پتا ہے اور بتاتے نہیں۔ یہ بھی بڑے مجرم ہیں، میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں۔ کوئی تو ہوتا اس نقصان سے خبردار کرنے والا۔ اور میرے بھائیو، زمیندار کا ایک پودا مر جائے اس کی جان نکل جاتی ہے۔ دیکھو کہ صلی اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے لگی ہوئی ساری فصل مرجھا گئی، کوئی بھی رونے والا نہ ملا۔ ایک کپاس کا پودا پھل نہ لے، چہر بدل جاتا، سر میں درد ہو جاتا ہے، فصل کا رنگ پیلا پڑ جائے، زمیندار کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دیکھو سارے ایمان کی فصل میں پیلا کیا ہونا تھا، آگ لگ گئی۔ درختوں میں پھل کیا دینا تھا، دشمن نے کاٹ کے لکڑی کے انبار لگا دیے، اور ہم بھی ان میں شریک ہو گئے۔ ہم اصل میں ہم نے بہار دیکھی تھی، خزاں میں پیدا ہوئے، خزاں میں جوان ہوئے، خزاں میں کوئی بھی رونے والا نہ ملا۔ ایک کپاس کا پودا پھل نہ لے، چہر بدل جاتا، سر میں درد ہو جاتا ہے، فصل کا رنگ پیلا پڑ جائے، زمیندار کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو دیکھو سارے ایمان کی فصل میں پیلا کیا ہونا تھا، آگ لگ گئی۔ درختوں میں پھل کیا دینا تھا، دشمن نے کاٹ کے لکڑی کے انبار لگا دیے، اور ہم بھی ان میں شریک ہو گئے۔ ہم اصل میں ہم نے بہار دیکھی تھی، خزاں میں پیدا ہوئے، خزاں میں جوان ہوئے، خزاں میں بڑھاپے کو چل دیے، خزاں میں موت آ لے، پچھلی ساری نسل اس طرح مر گئی۔ ہم نے بہار دیکھی نہیں۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ہمارے پاس تو کہانیاں رہ گئی بتانے کو، نہ ہم نے بہار دیکھی۔ اور آگے نسل کو دیکھ کر نہ نظر آ رہا ہے کہ آگے دکھائی بھی دے گی کہ نہیں، پوری نسل ہی فروخت ہو گئی۔ کوئی سیاست پہ بک گیا، کوئی گانے بجانے پہ بک گیا، کوئی دکانوں پہ فروخت ہو گیا، کوئی عزتوں پہ فروخت ہو گیا۔ منڈی بن گئی، امت منڈی میں آ گئی، منڈی میں آ گئے، ایسے غلے بکتے ہیں ایسے ہم بھی بک گئے۔ تو احسان عظیم ہے اس وقت بھائیو لوگوں میں آ کر انہیں آخرت کا پیغام بتانا۔ صحابہ کا ہم پر احسان ہوا کہ انہیں گھر چھوڑے، بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، خاک چھانی، اور اس پیغام کو آباد دنیا کے آخری سرے تک پہنچایا۔ حالانکہ یہ لوگ تھے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارتیں مل چکی تھی، اس کے باوجود وہ نکلے، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، ماں نے تربیت کی۔ ہماری تو عورت کی تربیت نہیں ہوئی، اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے نسل کو تیار کیسے کرنا ہے، اور ہم نے بھی عورت کے ذمہ اتنا ہی لگا دیا، روٹی پکائے اور چولہا گرم رکھے، گھر میں جھاڑو دلائے، میرے کپڑے دھو دے، بس ہماری عورت کا اتنا ہی کام ہے۔ ہماری عورت تعمیر ساز تھی، نسل انسانی تعمیر کرتی تھی۔ ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حبیب بن زید کو مسلمہ کذاب نے پکڑا، کہنے لگا ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کا رسول ہوں تو میں چھوڑ دوں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے سنائی نہیں دیتا وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہنے لگا محمد اللہ کے رسول ہیں
کہنے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے. کہنے لگا میں اللہ کا رسول ہوں. کہنے لگے مجھے تو سنتا ہی نہیں تو کیا کہتا ہے. تو اس نے ایک ہاتھ آپ کا کاٹ لیا. کہا بول، مجھے ایک دفعہ کہہ دیا اللہ کا رسول ہوں جان بخشی جائے گی. کہنے میں تو سنتا ہی نہیں، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. پھر کہنے لگا اب بھی موقع ہے بول دے کا، مجھے سنا ہی نہیں تھا، ایک پاؤں کاٹ لیا. پھر کہا اب بھی موقع ہے کہ مجھے سنتا ہی نہیں تھا، دوسرا پاؤں کاٹ لیا. پھر کہا اب بول دے، اب بھی موقع ہے کہ مجھے سنا ہی نہیں دیکھا، کان کاٹ دیے. پھر گوشت ہڈیوں سے اتارنا شروع کیا. کہتا ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کا رسول، مجھے سنتا ہی نہیں. ایسے جیسے بکری کا ہم گوشت ہڈیوں سے اتارتے ہیں، ایسے حدیث کی کھال اتار دی، گوشت ادھیڑ دیا اور اس درد سے ذبح کیا کہ پرائے بھی سنے تو ان کے خون کے آنسو نکل آئے. لیکن جب اس کی سگی ماں میں ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ تیرے بیٹے حبیب کو اس طرح ذبح کر دیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا لہذا اليوم ارضعته ہو وعند اللہ احتسبته ہو، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا. اور مجھے امید ہے میرا اللہ مجھے اس کا صلہ دے گا. جیسے ہماری مردوں کی تربیت نہ ہوئی، عورتوں کی تربیت نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کے نبی نے پہلے دن سے اپنی امت کو اس محنت پر زندہ کی، زندہ کر کے کھڑا کیا. عورتوں کو شریک کیا، مردوں کو شریک کیا. شادیاں بہت زیادہ کی، شوق تھا شادیوں کا. شادیوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کرتے ہیں، 25 برس سے. اور ہمارا نبی تھا کیسا؟ ام معبد الخزاعیہ کہ خیمے صاحب کو گزر ہوا، اس کی بکری کا دودھ نہیں تھا، آپ کو پیاس لگی، بھوک بھی تھی، شام میں کچھ کھانے کو ملے گا؟ کبھی کچھ بھی نہیں. کہ یہ بکری کسی ہے؟ کہ اس میں تو دودھ نہیں، کہ ادھر میرے پاس لیا. تو آپ بکری کو آپ نے لیا اور اس کے تھن پہ ہاتھ مارا، وہ سارے تھن دودھ سے بھر گئے. ہم نے کہا برتن لیا، وہ برتن لایا، آپ نے شک 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 سارے برتن بھر دیے. پھر ایک پیالے میں خود پیا اور بغل کو پلایا، جو ساتھ راستہ بتانے والا تھا اس کو پلایا اور آگے چل دیے. جب کھانے لایا شام کو دیکھا تو گھر میں دودھ، کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ کہ ایک کوئی برکت والا نوجوان آیا تھا جس کے ہاتھوں میں ایسی برکت تھی کہ اس بکری نے دودھ دینا شروع کر دی. تو وہ کہنے لگا وہ کیسا تھا مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو مکے سے نکلا ہوا کہیں وہ نہ ہو. تو وہ کہنے لگی ظاہر الوباء، ظاہر الوباء، بڑا صاف ستھرا تھا. میلے کچیلے رہنا کوئی اسلام نہیں. کیوں ہے میلے کچیلے رہنا؟ کوئی اسلام نہیں. ہمارے نبی کے کپڑے قیمتی نہیں ہوتے تھے، صاف ستھرے ہوتے تھے. میلے رہنا کوئی بزرگی نہیں ہے. وہ جو بالکل، اور ہمارے یہاں تو جہالت کا ایسا دور ہے نا، جس بالوں میں مٹی پڑی ہو، داڑھی بکھری ہو، کپڑے میل چڑھی ہو، جسم پہ میل چڑھی ہو، وہ سرکار بن جاتی، پہنچی ہوئی سرکار. اور بالکل ہی ننگا ہو جائے تو مجذوب سرکار. ایسی جہالت. ہمارے ملتان میں ایک مجذوب تھا، ننگ دھڑنگ، خلقت کٹھی رہتی تھی اسے، عورتیں مرد بیٹھو، جس کو وہ گالی نکال دیتا کہتے سائیں مبارک ہو گئے تو سرکار گال کٹھی، تمہارا بیڑا تر جائے. اس قدر جہالت، اس قدر جہالت. پنجاب کی سرزمین بھی عجیب ہے، اس نے نبی کو جگہ دے دی تو پیروں کو کیسے نہیں دے؟ جھوٹے پیر تو ان کا گلا کیا کریں گا، تو جھوٹا نبی چل گیا. اب قادیان پنجاب میں ہی ہے، مصر کی پنجاب میں. ہمارا نبی کیا کہتا؟ ظاہر الوباء، صاف ستھرے کپڑے پرانے صاف ستھرے. ابلج الوجه، چمکتا چہرہ، روشن چہرہ. لم تعبه سجلہ، موٹے نہیں تھے. یہ عورت بتا رہی موٹے نہیں تھے. لم تجری به سعلہ، گنجے نہیں تھے. وسیم قصیم، فی عینیہ وقف، فی صوتہ سحل، فی شعرہ رجل، فی عنقہ سطع. سبحان اللہ. یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا ترجمہ بھی میں نہیں اردو میں کر سکتا پورا. کہنے کیا پوچھتے ہو اس کا؟ اس کی آواز میں ایک جادو تھا، اس کی آنکھوں میں ایک کشش تھی، اس کی گردن میں ایک بلندی تھی، اس کے چہرے پر ایک نور تھا. وسیم قسیم،
वसीम किसे कहते हैं? खूबसूरत। कसीम भी खूबसूरत, लेकिन वसीम वो खूबसूरत है जिसको जितनी दफा देखो उतनी दफा उसका हुस्न बढ़ता जाए। वसीम, वसामा से, जब देखा पहले से ज्यादा खूबसूरत, जब देखा पहले से ज्यादा खूबसूरत, जब देखा पहले से ज्यादा हसी, जब देखा पहले से ज्यादा जमाल व कमाल। कब वो क्या पूछते हो? वसीम था, जितनी दफा नजर उठी उतनी दफा पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आया। कसीम था, कसीम किसे कहते हैं? कसीम फलाना बड़े कद, थोड़े कद दावे, मतलब कद तो लंबा है, शक्ल ऐसी नहीं। फलानी की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, क्या मतलब? आंखें तो बड़ी खूबसूरत है, नाक ऐसा नहीं। जब हम किसी एक चीज की तारीफ करते हैं तो साथ ही इस बात की अलामत होती है कि बाकी हुस्न ऐसा नहीं जैसा उसकी नाक का है, जैसा उसकी आंख का है, जैसा उसके कद का है, जैसा उसके हाथ का है, पांव का है। कसीम किसे कहते हैं? कसीम, कसीम जो जिस तरफ से देखो हुस्न का शाहकार नजर आए। तो ये दुनिया में एक ही आया, वसीमुन कसीमुन, वसीमुन कसीमुन, ये दुनिया में एक ही आया। जिधर से देखो हुस्न में शाहकार, जिधर से देखो हुस्न में बाकमाल, और जितनी दफा देखो उतनी दफा हुस्न बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, उतनी दफा वो कमाल की तरफ चढ़ता चला जाए। ऐसा हमारा नबी। इज़ा तकल्लम अलाहुल वक़ार, जब बोलते थे अलाहुल बहा, एक रौनक आप पे छा जाती थी। इज़ा सकत अलाहुल वक़ार, जब आप खामोश होते थे तो आप पर एक वक़ार छा जाता था। अंदर सलासा, तरो ताजा, खुश तरो ताजा, सब्ज टहनी की तरह लचकदार उसका जिस्म। ये एक और लंबी चौड़ी पूरी एक जिल्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये पर ही चलती चली गई है। वो सुबुलुल हुदा व रशाद सीरत की किताब पर हर सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे बयान किया कि हमारा नबी कैसा था, हमारा नबी कैसा था, हमारा नबी कैसा था, एक एक चीज को खोल 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 के बयान किया। ये मुबारक जिंदगी का तारुफ करवाना, ये हमारे जिम्मे। ऐसे हसीन आदमी को कौन लड़की नहीं देगा, जवान खूबसूरत कमारी, जिसका हुस्न ऐसा हो है कि अल्लाह ने नमूना एक ही बनाया, फिर और कोई बनाया ही नहीं। आयशा फरमाती थी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर औरतों ने हाथ काटे थे, मेरे महबूब को देखती तो दिल पे छुरियां मार जाती, उन्हें पता ही नहीं चलता। आपका जाहिरी चमक नूर ऐसा था, जब कभी आपके माथे पर पसीना आ जाता था ना तो उसमें से श्वाएं निकलना शुरू हो जाती थी। चरखा काट रहे हैं, चरखा, आगे हुजूर बैठे हुए थे, गर्मी, और आप अपना कोई जूता ठीक कर रहे थे या कपड़ा ठीक कर रहे थे, तो पसीने से कतरे माथे पर आ गए, वो चमकने लगे। तो आयशा ने चरखा छोड़ के आपको से देखना शुरू कर दिया। तो आपने कहा क्या देख रही हो? तो एकदम हुजली का शेर पड़ा कि जब मैं उनके चेहरे पर नजर डालता हूं तो यूं लगता है कि जैसे बिजलियां कौंध रही हों। ऐसे आपका पसीना ऐसे खूबसूरत हो जाता था, तो आपकी जात कैसे हसीन न होगी। तो 40 साल की औरत से शादी करने का क्या जरूरत है, जिसके 2 निकाह पहले हो चुके हों, हर निकाह से औलाद भी मौजूद हो, फिर उनसे तीसरी शादी। 25 बरस की जवानी, 40 बरस की ढली हुई औरत के साथ शादी, और उम्र के 25 बरस उन्हीं के साथ गुजार दिए। 50 बरस की उम्र एक औरत के साथ गुजार, और जब 50 साल के बाद ढलवान शुरू हो गई, बुढ़ापा शुरू हो गया, अब दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी, फिर 5वीं, फिर 6वीं, फिर 7वीं, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। इसको भी कोई शौक की शादी कर सकता है? जो भरपूर जवानी थी एक औरत के साथ गुजार। जब दूसरी शादी की हजरत सौदा से, वो भी 40 साल के पैटर्न थी। तीसरी शादी आपने हजरत आयशा से की, एक कमारी लड़की, बस बाकी शादी या मुतल्लका या बेवा, या मुतल्लका या बेवा, और अल्लाह के अमर से की है हर शादी। वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाजिन वलौ आजबका हुस्नुहुन, अल्लाह ताला कह रहा है यही तेरी बीवियां हैं, दुनिया में भी जन्नत में भी, इनके सिवा तेरे लिए कोई औरत जायज नहीं। अमर इलाही से शादी हो रही। हज़रत ज़ैनब साहब शादी करना ही नहीं चाहते। ज़ैद की बीवी, ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी, ज़ैद इब्न हारिसा को बेटा बनाया हुआ था, और अरब में दस्तूर था जिसको बेटा बना लो तो वो सका बेटा शुमार होता था। वो नाम ज़ैद बिन मोहम्मद चलता था,
विरासत में हिस्सा मिलता था। अल्लाह इस बात को खत्म करना चाहते थे कि बेटा बाप का होता है, ये कोई नहीं कि इसको मैंने बेटा बना लिया। अल्लाह ये बात खत्म करना चाहते थे। तो अल्लाह उदउहुम लिआबाइहिम, इनको उनके बाप के नाम से पुकारो। देखो हजरत ज़ैद का नाम सिर्फ कुरान में आया है, इसके अलावा किसी सहाबी का नाम कुरान में नहीं आया। और गालिबन उसकी वजह यह है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत ज़ैद से एक फजीलत को वापस लिया, क्योंकि ज़ैद बिन मोहम्मद कहलाते थे, ज़ैद बिन मोहम्मद आपने बेटा बनाया था, बचपन में कोई साथ ले लिया था, तो अल्लाह ने कहा नहीं ज़ैद बिन हारसा कहो, ज़ैद बिन हारसा कहो। तो है ज़ैद पर बहुत बड़ा इम्तिहान आया कि हाय मेरी इतनी बड़ी निस्बत मुझसे छिन गई। तो अल्लाह ताला ने इस निस्बत के लेने के बदले में कुरान में आपके नाम को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। फलम्मा क़दा ज़ैदुन मिनहा वतरन ज़व्वजनाहा, तब बेटे मुंह बोला बेटा सगा बेटा, उसकी बीवी बहू उन्होंने दे दी तलाक। अल्लाह कहे निकाह करो, निकाह करो। अब आप निकाह करो, अब आप निकाह करने पे आ नहीं रहे कि मैंने निकाह किया तो सारा अरब कहेगा बहू घर में बिठा ली। तो जब आपने थोड़ी ताखीर की तो अल्लाह पाक ने आसमान से आयत उतार दी, फलम्मा क़दा ज़ैदुन मिनहा वतरन ज़व्वजनाहा, कहा जब ज़ैद ने तलाक दी तो मैंने तेरा निकाह पढ़ दिया। ये वाहिद निकाह है जो आसमानों पे हुआ, न इसमें ईजाब न कबूल है, न गवाह न वकील न कोई निकाह खां। ईजाब कबूल वाजिब है निकाह में, मैंने तेरे निकाह में दिया ये कहना वाजिब है। अगला कहे मैंने कबूल किया ये कहना वाजिब है, ये ना हो तो हो ही नहीं सकता। हमारे कजीज के नौकर का निकाह हो रहा था, तो वो मौलवी साहब ने उससे कहा हाँ भाई मैं फलाने दी इतने मैरिज तेरे निकाह जितनी तू कबूल की थी पंडित जी में सही सारे की सलाह हो गए। मौलवी साहब कहना सारे की सलाह नाल निकाह नहीं होना, तेरी सलाह नाल होना। तो जब तक वो ये न कहे मैंने कबूल किया निकाह ही नहीं होता। तो ये एक वो निकाह है जिसका ना कोई निकाह खां है, जिसका ना ईजाब है न कबूल है न गवाह है न महर है। आसमान से अल्लाह ने कहा मैंने तेरा निकाह ज़ैनब से कर दिया। तो आप मुस्कुराए, कौन जाके ज़ैनब को खुशखबरी देगा कि अल्लाह ने उसको मेरी बीवी बना दिया। तो एक खातून भागी हुई गई, उन्होंने खुशखबरी दी, तो ज़ैनब अब ने अपना हार उसके गले में डाल दिया और सजदा शुक्र में 2 नफल पढ़े, सजदा शुक्र बजा लाएं। और ये 5 हिजरी का वाक़या है। इस वलीमे पर हज़रत ज़ैनब ने कहा या रसूल अल्लाह ये वलीमा मैं खुद करूंगी, मैं अपने पैसे से करूंगी। तो ये वलीमा बड़ा पुरतकल्लुफ़ हुआ, यानी एक गाय ज़बह की गई और एक रिवायत में बकरी ज़बह की गई, एक रिवायत में गाय ज़बह की गई। तो गालिबन गुमान ये कि गाय वाली रिवायत ज्यादा सही है कि एक गाय ज़बह हुई और सारे मदीने को रोटी खिलाई गई। बकरी वाली रिवायत भी सही है, मौजज़तन अल्लाह ताला ने एक बकरी सारे मदीने वालों को खिला दी, लेकिन वलीमे में तकल्लुफ़ किया गया। ये जो आपने कसरत से शादियां की ये औरतों में दीन के काम को जिंदा करने के लिए था कि औरत अपने आप को सिर्फ बच्चे पालने और परवरिश करने की जिम्मेदार न समझे और सिर्फ रोटी पकाने की जिम्मेदार न समझे, बल्कि इस उम्मत की औरत भी सारी दुनिया में इस्लाम फैलाने की जिम्मेदार है और सारे आलम के इंसानों को अल्लाह का पैगाम सुनाने की जिम्मेदार है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को 11 बीवियां अता फरमाई, तो आपकी जिंदगी में इंतकाल कर गई हजरत खदीजा और हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, बाकी 9 जिंदा रही और आपके बाद काफी देर तक जिंदा रही। इन 9 घरों में हर वक्त अल्लाह पाक के दीन की तालीम चलती थी, औरतें आकर सीखती थी, आगे अपने बच्चों को सिखाती, खामदों को बताती, बेटियों को बताती। तो इस तरह हमारे नबी की औरतों के जरिए से औरतों में दीन जा रहा था, सहाबा के जरिए से मर्दों में दीन जा रहा था। ये पैगाम हक सारी दुनिया में पहुंचाना मेरे भाइयों इस उम्मत की जिम्मेदारी है। हमारी औरतें भी जिम्मेदार हैं, हमारे मर्द भी जिम्मेदार हैं कि हम अपनी निस्बतों को तोड़ें और अपने आप को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती समझते हुए पूरी दुनिया में इस पैगाम को पहुंचाने की जिम्मेदारी कबूल करें। लितकूनु शुहदा अलन नास, हम लोगों पर हुज्जत कायम कर दें कि अल्लाह है और जन्नत है और रिसालत है और ये किताबुल्लाह है। इसकी मेहनत हमारे जिम्मे। हमारी जमात गई 2000 में अमेरिका, एक नौजवान मिला कराची का, उसने बड़ा कमाल दिखाया। वहाँ एक वेल यूनिवर्सिटी है, वेल बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी, वहाँ एक प्रोफेसर का लेक्चर था ईसाइयत पर, PhD डॉक्टर ईसाइयत पर, ये भी उसमें शामिल था। तो 300-400 का मजमा सब PhD, ये खुद भी PhD था। उन्होंने ईसाइयत की तबलीग की, सरकार भी कोई सवाल, तो ये खड़ा हुआ था मेरा एक सवाल, क्या 3 खुदाओं को आप साबित करें अकली तौर पर।
तो तीन है, इसकी कोई अकली दलील है ही कोई, लगा इसमें वो चक्कर खा जाते हैं। वो कहता बस इसको कड़वा घोंड समझ के पी लो कि 3 हैं, दलील है ही नहीं, वो कैसे। तो जब वो दाएं बाएं होने लगा तो उन्होंने कहा मैं दलील देता हूं कि अल्लाह एक है 3 नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या दलील है? कहा ये हमारी किताब दलील है, हमारा कुरान दलील है। कहा ये कैसे साबित हो कि ये कुरान अल्लाह की किताब है? कहा इसकी मेरे पास दलील है, ये तुम्हारे पास कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर उसको कहते, वो 1 मिनट में 1 अरब जावियों से चीज को देख लेता है, 1 अरब जावियों से। इस कंप्यूटर को कुरान में डालो और अपनी इंजील को भी डालो, अपनी बाइबल को भी डालो, ये सारा कुरान 19 के हिंदसे के साथ साथ चलता है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हर्फ हैं, 19 कुरान की सूरतें 119 हैं, और 19 इसके हर्फ हैं। इस तरह हर सूरत, हर आयत, हर मजमून 19 के हिंदसे के साथ साथ चलता है। तुम इसे परखो, कहीं 19 का हिंदसा लूज हो जाए तो ये अल्लाह की किताब नहीं। अब तुम बाइबल को भी डालो, ये हर जगह टूट जाएगी, हर जगह टूट जाएगी। इससे पता चलेगा तुम्हारी किताब बदल चुकी है, मेरी किताब नहीं बदली। उन्होंने कहा अच्छा हमें 1 हफ्ते की मोहलत दो, 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। 1 हफ्ते के बाद दोबारा सारे वो PhD इकट्ठे हुए, वो प्रोफेसर आया, कहा भाई हमने तुम्हारी किताब को देखा और पूरा हफ्ता देखा, किसी जगह भी हमने इसमें न झोल देखा, न 19 के हिंदसे को टूटते देखा। तो ये बात हक और सच है कि एक हिंदसे पर इतनी बड़ी किताब को घुमाना इंसानी ताकत की ये बात नहीं, वाक़ नहीं है, अल्लाह ही का ये शाहकार है। और इस पर 70 आदमी मुसलमान हुए, बशमूल वो PhD प्रोफेसर जो ईसाईयत की दावत देने आया था, उसके साथ 70 PhD मुसलमान हुए। हमारा एक नौजवान भी अगर हिम्मत कर ले तो यूं इस्लाम का जरिया बन सकते। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने दुनिया में इस्लाम फैलाना। नाज़म बनने के शौक चढ़े हुए, होटल बनाने के शौक चढ़े हुए, होटल घर घर होटल बन गए, बस कमाइयों के शौक हैं। जिम्मेदारों को अपने शौक, ताजरों को अपने शौक, जवानों को अपने शौक, मर्दों को अपने शौक, औरतों को अपने शौक, और भाई को ये शौक भी बनाए कि या अल्लाह मैंने तेरे ईमान को, तेरे इस्लाम को दुनिया में जिंदा करना है। तो ये मेहनत सांझी है, मर्दों की भी औरतों की भी। इसको लेकर सारी दुनिया में फिरना ये इस वक्त की सबसे बड़ी निदा और सदा है, और सबसे बड़ी जरूरत है भाइयों। एक आदमी का कलमा पढ़ लेना 7 जमीन की बादशाही से बड़ी चीज। जबला बिन अहम अरब सरदार था, मुर्तद हो गया, मुसलमान हुआ, फिर मुर्तद हो गया, फिर रोम चला गया। वहां इस्तांबुल में रोम के बादशाह ने उसका बड़ा एजाज किया। हज़रत उमर ने एक वफद भेजा, वो वफद उससे मिलने गया, उन्होंने उसको इस्लाम की दावत दी। वो कहने लगा मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूं, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की। तो उन्होंने उससे कहा कि तू तो खाली इस्लाम छोड़ के आया है। सुलैहा ने इस्लाम भी छोड़ा, नबूवत का दावा भी किया, तौबा कर ली, तो उमर ने उसकी तौबा कबूल कर ली। अब वो हमारे साथ है, तू तौबा कर, तेरी भी कबूल हो जाएगी। कहने का ठीक है मैं तौबा करता हूँ, मुसलमान होता हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह कि उमर अपनी बेटी मेरे निकाह में दे, दूसरी शर्त यह है कि अपने बाद खिलाफत मुझे लिख के दे। वो कहने लगा बेटी का मसला तो मैं अभी तय करता हूँ कि मैं उमर की तरफ से मैं जामिन हूँ, तुझे निकाह में उसकी बच्ची ले दूंगा, लेकिन हुकूमत का मसला, खिलाफत का इज्तिमाई है, मैं अकेला फैसला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ठीक है, ये मेरी शर्त उमर को बता दो। ये वफद वापस आया, हज़रत उमर को बताया, तो हज़रत उमर ने फरमाया अरे अल्लाह के बंदे खिलाफत का वादा भी कर देते, दोज़ख से जो बच जाते, दोज़ख से तो बच जाते, क्या देते कि हुकूमत भी दे देंगे तो मुसलमान हो जाओ। एक आदमी को मुसलमान बनाना पूरी सल्तनत को दाव पे लगाने से हमें ज्यादा महबूब होती, हम सल्तनत दाव पे लगा सकते हैं, एक आदमी को कुफर का नहीं देख सकते। ये हमें मिजाज दिया गया। फिर एक दफा दोबारा आपने वफद भेजा, तो आपने उनसे कहा अब जब जाओ तो जबला से कहना कि उमर कह रहा है कि मैं वादा करता हूँ हुकूमत भी तुम्हें दे दूंगा, तो मुसलमान हो के आ जा। तो ये वफद जब वहां पहुंचा इस्तांबुल में, तो जब ये शहर में दाखिल है तो आगे से एक जनाजा आ रहा था। उन्होंने पूछा ये किसका जनाजा है? उनका ये जबला बिन अहम का जनाजा है। तो भाई ये तो एक शख्स को इस्लाम पे लाने के लिए पूरी हुकूमत को दाव पे लगाने को तैयार। ये जज्बे दोबारा जिंदा हो जाएं हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में, हमारे मर्दों में, हमारी औरतों में।
इसके लिए वक्त लगाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपके पास सारा पाकिस्तान आता है। अगर आप मरी वाले तबलीग का काम अपना काम बना लें तो जो लोग यहाँ गुनाह करने आते हैं वो भी तौबा करके वापस, बल्कि आप अपनी कमाई ये समझो कि जो भी आएगा उससे तौबा करवानी, क्योंकि अक्सर आने वाला मजमा गफलत का है, अक्सर आने वाले लोग गाफिल हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन अक्सरियत ऐसों की आती है जो यहाँ वक्त जाय करने आते हैं, गुनाह करने आते हैं। आप सिर्फ होटल का फिक्र न करो हमने होटल चलाने में, आप उसके साथ साथ ये फिक्र करो हमें इनसे तौबा भी करवानी, इनको अल्लाह के रसूल का गुलाम भी बनाना है। ये सोच अगर आपकी जिंदा हो गई तो मरी में बैठे बैठे सारे पाकिस्तान के लोगों में आपके बरकत, आपके समराज जा सकते हैं। कहां कहां से लोग तौबा करके जाएंगे, आपका खाता खुलता चला जाएगा। हर होटल को मस्जिद का नमूना बना दो, हर किराए के कमरे को मस्जिद का नमूना बना दो कि जो भी आए वो शर्म से गुनाह करना छोड़। माहौल ऐसा बनाओ, माहौल ऐसा बनाओ कि उन्हें शर्म आए गुनाह करते। अब तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि गुनाह के लिए दावत चलती है और गुनाह के लिए शय मिलती है। आप भाई ऐसा माहौल बनाओ कि गुनाह करने वाला भी तौबा करके जाएगा, या शर्म आती ऐसे पाक माहौल में मैं कैसे गुनाह करूं। तो माहौल ऐसा बनाओ तो इंशाल्लाह आपका खाता सारे मुल्क में खुल सकता है और उसके जरिए से सारी दुनिया में खुल सकता है। इसके लिए बोलो बताओ भाई, आज तक जो हुआ इस पे तो करो तौबा। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है, माफ करने को बड़ा पसंद करता है। जो हो गया या अल्लाह माफ कर दे, और माफी का दरवाजा उसके यहाँ खुला हुआ है मौत तक, जब तक सांस न टूटे मौत, तौबा का दर खुला हुआ है। इस पर तो हम तौबा करें और आइंदा उस जिंदगी को इख्तियार करने की नियत करें जो अल्लाह का रसूल लेकर आए, पाक जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी, अल्लाह के यहाँ मकबूल जिंदगी। इसको सीखना भी है, इसको फैलाना भी है, इसको लेके फिरना भी है। नबूवत वाली इबादत के साथ नमाज जिंदा हो, रोजा जिंदा हो, ज़कात देने वाले ज़कात दें, जिन पर हज फर्ज है वो हज करें। नबूवत वाले अखलाक के साथ माफ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें, बुरे से अच्छा बनना सीखें, गाली देने वाले को दुआ देना सीखें। हमारा इंतकामी मुआशरा, इंतकामी। जब खामिन किसी से लड़ पड़े तो बीवी से भी कहता है तूने उससे बात नहीं करनी वरना तुम्हें तलाक दे दूंगा, और औरत किसी से लड़ के आ जाए तो मियाँ से कहती मेरी उससे लड़ाई हो गई, तूने उनके घर में नहीं जाना वरना तेरा घर छोड़ के चली जाऊंगी। हमने ये कांटे जो बोए हैं इनको हमने काटना है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाली, अखलाक वाली जिंदगी का बीज बखेरना है कि हम नफरत के बदले में मोहब्बत दें, गाली के बदले में दुआ दें, और गुस्से के बदले में नरमी दें, और जिल्लत के बदले में उनको इज्जत दें। जो हमसे तोड़े हम उससे जोड़ें, जो हमारा हक छीने हम उससे उसका हक अदा करें, जो हम पर जाति करे हम उससे माफ करें। ये मुआशरा अपने बच्चों में बचपन से तैयार कर दें। कल को ये बच्चा जब जवान हो किसी बच्ची को लेके चले तो उसकी रियायत करके चले। ये लड़की कल को किसी के घर में जाने वाली है तो जब किसी के घर में जाए तो उनकी राहत का सामान बने। ये ना हो कि पहले दिन से दीवारें खिंचवाना शुरू कर दे कि दीवारें बना दो, मुझे अलग कर दो। ये ना हो, हर बच्ची नबूवत वाले अखलाक लेकर जाए, हर बच्चा नबूवत वाले अखलाक लेकर परवान चढ़े, ताकि जिंदगियां खुशगवार गुजरें। पैसे से जिंदगी नहीं खुशगवार होती, नबी वाले अखलाक से जिंदगी खुशगवार होती है। अब आप बोलते जाओ, बताते जाओ, ये लिखते जाएं, इंशाअल्लाह आपकी भी जिंदगी बदलेगी, हमारी भी बदलेगी। आप बोलो भाई कौन तैयार? ये पीरा के लोग बड़े समझदार हैं, इन्होंने अपनी तरफ सड़क नहीं बनने दी, न बिजली को आने दिया है न सड़क को आने दिया। वो कहते हैं उनका मौक़िफ़ ये है जहां बिजली चली जाए और सड़क चली जाए वहां बेहयाई भी चली जाती। और बहुत हद तक ये बात उनकी ठीक है, काफी हद तक ये बात ठीक है। उस सारे पीरा में कोई जिना नहीं, कोई जिना नहीं, कोई शराबी नहीं। और पहले उनकी कत्ल की दुश्मनियां थी, ये गुनाह उनमें कसरत से था। जब से तबलीग का काम चला है अल्लाह ने उसको भी न होने के बराबर कर दिया, बहुत कम रह गया। शुरू में बहुत ज्यादा था, घटते 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 बिल्कुल खत्म हो गया। तो वो बड़े समझदार लोग हैं, उन्होंने न बिजली को आने दिया न सड़क को आने दिया। जब सड़क जाती है, बिजली जाती है, तो फिर सारी यूरोप की तहजीब भी आहिस्ता 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 वहां पहुंच जाती है। लेकिन इसके बावजूद शहरों के निस्बत पहाड़ों पे
اثرات کم، کیونکہ باطل کا زیادہ زور بھی ادھر ہی ہوتا ہے، شہروں پر زیادہ زور، وہاں نسل خراب ہوگی تو اس کے اثر چاروں طرف پھیلتا چلا جائے گا۔ آپ بھائی اگر تھوڑی بھی محنت کر لیں گے تو شہر میدانی علاقوں سے زیادہ اچھے نتائج لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو پہلے ہی فطرت سے زیادہ قریب ہے، دنیا بھی عام طور پہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، زندگی بھی مشقت کی، پہاڑ پہ چڑھنا اترنا تو جسم بھی مضبوط ہوتا ہے۔ شہری لوگ سہولت پسند ہوتے ہیں، آسان زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں، دین مشقت کو چاہتا ہے، مشقت والے مزاج کو چاہتا ہے، تو عام طور پر جو شہری طبقہ ہوتا ہے اور خاص طور پر مالدار طبقہ، وہ دین کے کام سے اپنی سستی کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے کہ نہ وہ گرمی سہ سکتے ہیں نہ سردی سہ سکتے ہیں، نہ روکھی سوکھی روٹی کھا سکتے ہیں، نہ وہ پیدل چل سکتے ہیں، نہ وہ اپنے جسم پہ پسینہ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے پناہ مانگا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے، سستی اور کاہلی سے۔ تو پہاڑی زندگی ایسی ہوتی کہ اس میں سستی آ نہیں سکتی، ایک دفعہ اوپر چڑھنا نیچے اترنا ساری سستی تو گئی۔ آپ لوگ دنیا میں دین کے کام کرنے کے لیے بہت فٹ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ریگستان میں پیدا کیا تاکہ ایک نسل چاہیے تھی جو دنیاوی سہولتوں کی عادی نہ ہو، جو گرم ہواؤں کو سہ سکیں، سرد ہواؤں کو سہ سکیں، بھوکے پیاسے چل سکیں، پیدل چل سکیں، پہاڑوں پہ چڑھ سکیں۔ تو ریگستانی کوہستانی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور کا صحابی بنایا اور ان کو ذریعہ بنایا دنیا میں اسلام کے چمکانے اور پھیلانے کے۔ اگر ہر بستی میں مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنے کا نظام چل جائے، 5 وقت نماز تو ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر بھائی مسجد کو وقت دے کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم والی مسجد کا نمونہ بنانا ہے، اس میں تعلیم بھی ہو، ذکر بھی ہو، تلاوت بھی ہو، ترغیب بھی ہو، نماز بھی ہو، یہ ساری چیزیں مسجد کے ماحول میں زندہ ہوں اور ہر مسلمان اپنا کچھ وقت مسجد میں گزارے۔ یہ مسجد کا نظام پوری امت کو جوڑنے کی ایک شکل ہے۔ محلے کی مسجد پورے محلے کو جوڑتی ہے، جامع مسجد پورے شہر کو جوڑتی ہے، عیدگاہ جو ہوتی ہیں عیدگاہیں یہ سارے علاقے کو آپس میں جوڑتی ہیں، اور جو بیت اللہ کی مسجد ہے وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ نے حج دیا ہے۔ حج امت کے اجتماعی مسائل کو اکٹھے بیٹھ کر سوچنے کا بھی ایک نظام ہے، عبادت ہے، اور دوسری طرف یہ پوری امت میں اجتماع اور جوڑ کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، کوئی پورے گاؤں میں بے نمازی نہ رہے۔ چند سال پہلے اکثر نماز پڑھتے تھے، اب بجلی آ گئی، سڑکیں آ گئیں، ٹیلی ویژن آ گیا، گانے آ گئے، موسیقی آ گئی، اور ٹی وی کے بے حیا پروگرام آ گئے۔ سب جو نوجوان نسل ہے وہ دین سے دور ہوتی جا رہی، نماز سے غافل، قرآن سے غافل۔ تبلیغ اس سارے ظلمت کا تبلیغ توڑ ہے۔ 2 گشتوں مسجد میں 8 گھنٹے دے کر 24 گھنٹے مسجد کو آباد کیا جائے، کوئی 12 گھنٹے دے، کوئی 8 گھنٹے دے، کوئی 2.5 گھنٹے دے، کم و بیش، اور ہر نوجوان کا تعلق مسجد سے جوڑ دیا جائے۔ اور ہر آدمی کو، آپ اخباروں میں نہیں پڑھتے، بھوک سے تنگ اگر خودکشی کر، بچوں کو دریا میں پھینک دیا، بچوں کو نہر میں پھینک دیا، صرف اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ورنہ اس موقع پر اگر مسلح بچھا لیا جائے تو اللہ غیب سے رزق کھول دے، جس پر 3 دن کا فاقہ آ جائے، کسی کو نہ بتائے، اللہ سے مانگتا رہے، 1 سال کی حلال روزی اللہ بیٹھے بیٹھے گھر میں پہنچا دیتے۔ تو کیونکہ نہ مالداروں کو اللہ کا خوف نہیں، وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے۔ نظام سودی چل رہا ہے، جہاں سود کا نظام ہوگا وہاں پیسہ چند ہاتھوں میں ہوگا، جب پیسہ چند ہاتھوں میں ہوگا تو خود ہی فقر بڑھے گا۔ جب تک سود پہ تجارت چل رہی ہے کبھی بھی ملک خوشحال نہیں ہو سکتا، کبھی۔ جو معیشت سود پہ ہے اس سے مقدر میں غریب کا خون ہے ہی ہے، اسے غریب کا خون پینا ہے، اسے شاید کوئی طبقے کا خون پینا ہے، اور پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آنا ہی آنا ہے۔ یہ سود کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس کا ہم سود کو تو بدل نہیں سکتے، اس سوائے کہ انفرادی طور پر ہم اس میں حصہ نہ لیں، اور نظام کیسے بدلیں تو ہمارے ہاتھ میں نہیں، اور ٹکراؤ کی پالیسی ہمارا طریقہ نہیں۔ ہم نماز پہ ڈالیں لوگوں کو،
नमाज पढ़ो अल्लाह से मांगो, नमाज पढ़ो अल्लाह से मांगो। अल्लाह की कसम, जहां सारे मादी असबाब वसाइल की हद खत्म हो जाती है, वहां से नमाज की हद शुरू होती है। हमारे लिए क्या मसला है? मुसल्ला बिछाएंगे अल्लाह से मांगे, मुसल्ला बिछाएंगे अल्लाह से मांगे। हम दुआ मांगना सीख लें, दुआ मांगना, फिर अल्लाह अपना गैब चला के दिखा। मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, हमारे बुजुर्ग फौत हो गए। हाँ जी, मैंने उनका दस्तरखान चलते देखा जैसे बादशाह भी नहीं चला सकते। 6 साल मेरे उनके साथ सच्चे गुजरा, और शाम तक जो पैसा आता था मेरे हाथों से लाखों रुपए उन्होंने तकसीम करवाया। उसको दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, वहां दे दो, वहां दे दो। गिनी में जो जमा कर लेते थे फिर वो आगे के लिए रखते थे। ऐसे कीनिया में वो अपने कपड़े तकसीम करते रहे। एक जोड़ा तन पे रह गया, एक पीछे रह गया धोने का। तो वो एक आदमी कहने के लिए जोड़ा इसको दे दो। तो हमारे साथी हैं जावेद, उन्होंने कहा कि भाई ये आखिरी है, एक आपने पहना हुआ है, ये दूसरा है, एक तो रखें, एक धोया जाए दूसरा पहना जाए। कहने लगे मैंने बड़ी मुश्किल से गैब का दरवाजा खुलवाया है, तू मेरा बंद करवाना चाहता है? तू मेरा बंद करवाना चाहता है? दे दो उसको। दे दिया। जोहान्सबर्ग के एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां एक आदमी पहले से 6 जोड़े तैयार करके लाया हुआ। सूडान के सफर में एक जगह गाड़ी खराब हो गई, ट्रेन, वहां की ट्रेनें पाकिस्तान से भी छटी। तो इससे थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसी दुआ जानता हूं, जंगल में भी मांगो तो अल्लाह रिज़्क़ पहुंचाए। वो गाड़ी जंगल में खड़ी हो गई, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 8 घंटे खड़ी रही। अब सारी जमात को लगी भूख। उनका हजरत वो दुआ मांगे, हमें तो भूख लगी, मिलता कुछ है नहीं। तो दुआ तो कुरान की है, कुरान यही हम भी पढ़ते हैं, सहाबा ने भी पढ़ा था। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम वाली दुआ पढ़ी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ अल्लाह, मैं तेरी खैरात का भूखा हूं। आधा घंटा गुजरा होगा, पौना घंटा, 20 मिनट से पौने घंटे के दरमियान एक काला जंगल से भागता जा रहा, सर पे टोकरा रखा हुआ, तो भागा भागा आया, सीधा डब्बे में चढ़ा जहां मौलाना बैठे हुए थे। उनके सामने टोकरे को रखा और उन्हीं कदमों पे भागा, पीछे पलट के ना बोला ना कहा क्या है क्या नहीं, और जाते का भी पता न चला, छलावे की तरह रहा। वो कपड़ा हटा के देखा तो पूरा बकरा भुना हुआ उसने रखा। चलो मैं खाओ, नाक में बहुत खाओ भाई। नमाज पढ़ना सीख लो, अल्लाह की कसम गैब से रिज़्क़ है। सामने अपने अल्लाह से ताल्लुक नहीं जोड़ा कि भाई हमें मुश्किल में उसको पुकारें। लगा जब पैसे खत्म होते हैं तो कोई खुदकुशी करना शुरू कर देता है, कोई डाके मारना शुरू कर देता है, कोई जुल्म और सितम पे उतर आता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। भाई अल्लाह के सामने मुसल्ला भी जाएगा, अल्लाह दो सादे डिगे तो दे। हमने यानी अल्लाह से खुसूसी दरवाजे से लेना ही छोड़ दिया। जिस खिड़की में रस ज्यादा है उसी में धक्के खा रहा है। तो एक खिड़की खाली पड़ी, उधर जाते ही कोई नहीं। वो कह रहा भाई इधर से भी ले लो, इधर से भी राशन मिलता है, एक भी पड़े हुए सारे। हमें नमाज से राशन दुआओं से मिलता है, सदक़े से मिलता है, रोज़े से मिलता है, रोने धोने से मिलता है। ठीक है ना भाई, नियत कर लिया सबने। चल